Learners, welcome to ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର। ପିଲେ ଆମେ pedagogy evaluation ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ pedagogy ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବା MAMT, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର LTR ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା SSB TGT RHT JT ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଯେପରିକି OTET OSSTET CTET ଆଦି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛେ କି ପେଡାଗୋଜିରେ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମେ ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ କେମିତି ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି କି ତୁମମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପେଟ ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ କହିଛ, ପିଲାମାନେ ନ କହିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ପେଡାଗୋଜିରେ ଏବେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିପାରୁଛୁ, ସେଇ ପରଠାରୁ ଏଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲେ 101ଟା ସିରିଜ କରିସାରିଛେ ବା 101ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର କରିସାରିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ 2000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେଣି, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ କରିସାରିଲେଣି। ସେଇ ସିରିଜଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଏନଫ୍ ନ ଲାଗିଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, OAVS ହଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ତୁମମାନେ କ୍ଲାସକୁ ରେଫର କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରୁଛି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆକାରରେ ତମମାନେ ମେନସନ କରିଦଉଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ରହିଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆଧାର କରି ସିଲାବସ କଭର କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ କରି ପୁଣି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ତମମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲେ। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ରହିଲା, ସେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଆମେ 5ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କଭର କରିବା। ସୋ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 102ରୁ 106 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଏ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ପ୍ରିମିୟରରେ ହିଁ ପକେଇବି, ତ ତମମାନେ ସେଠି ଲାଇଭ୍ ଆସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଲାଗେ ପିଲେ? ତ ଏଇ ସିରିଜ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କାରଣବଶତଃ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ କ୍ଲାସକୁ ପ୍ରିମିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୁମେମାନେ 8ଟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଲା, କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ ହଉଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ ଆସୁଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ହ୍ୟାକ୍ ହଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେବି ପ୍ରିମିୟରର, ତ ତମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 102 ପିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ତମମାନେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର କରୁଛ ସେଇଟା ମେନସନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପିଲେ, at what stage a child begins to think logically according to Piaget? କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରେ? ପିଆଜେଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା, ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲେ? ନା ସାର୍, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ। କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉ ରହିଲା, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାର ଟ୍ରାନଜିଟିଭିଟି ଥଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ପିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ କରିପାରେ। ଟିକେ ଆମେ ଆକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ ପ୍ଲେ କରି ରଖିବା। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ। ତୁମମାନେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାର ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ପୁଣି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଏଟା ଆସିଲାନି ଟ୍ରାନ୍ସଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ? ଟ୍ରାନ୍ସଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଜନିଂ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ।
ये होची गोटे नाइदर इंडक्टिव नॉर डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग जो थे पिला कौन करे एणु तेणु प्रकार कथा गुड़ा कहे जो थे कज और इफेक्ट कौन प्रकार संपर्क न थाए जमीक आम कहूचे वर्षा है जदि से समय कुकुर भुकी से कहे कुकुर भुकिला बोली वर्षा है तो ये जो वर्षा हवा जो आम आउटकम टा कहूचे तार कजटा जो कुकुर भुकिबा आंक दिजन भितर कौन प्रकार संबंध न थाए कौन प्रकार संपर्क न थाए तेणुक आम कहूचे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है प्योरली इलॉजिकल रीजनिंग कज और इफेक्ट भितर कौन कारण और फलाफल भितर कौन संपर्क न थाए ये इंडक्टिव रीजनिंग नुहे कि डिडक्टिव रीजनिंग नुहे जमीक आम कह ताली मारदब ताली मारिया भितर जब किसी गोटे कौन घटना घटी जाइए कहे मुझे ताली मारली बोली से ट्रेन टा आसला ए मुझे ताली मारली बोली से पड़गला ये भाव में जो घटना गुड़िक से वर्णना कर जोटा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज तुम देखा जाए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिले कौन ना इंडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रे तो मैंने कौन जानिछ ना सर आईपी आई रे हला इंडक्टिव पी रे हला कौन ना पर्टिकुलर टू जनरल बा स्पेसिफिक टू जनरल बा एग्जांपल्स टू आमे कहूचे तुम मानकर फॉर्मूला हो एग्जांपल्स टू थ्योरी आड़ को एटा रीजनिंग से करि थाए आउ तुम मानकर ट्रांजिटिविटी थॉट पिले कौन ट्रांजिटिविटी थॉट गोटे फॉर्म ऑफ आमे कहूचे लॉजिकल रिलेशनशिप को से जानि पारे जेमति कि को प्रकार लॉजिकल रिलेशनशिप जेमति कि ए इज रिलेटेड टू बी A is related to B, B is related to C, then A and C both are related. এই जो relationship को से जानी पारे जेमति कि तुम माने कहउतल कि धर राम is taller than Sam, Sam is taller than Ravi, then राम is taller than Ravi. এই जो relationship टाकू से भलो भाव फाइंड आउट करि परिबो जानि परिबो तार ट्रांजिटिविटी थॉट रो डेवलपमेंट हुए कोदरे ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे पिले कोन ना सर हाइपोथेटिकल रीजनिंग से प्रेडिक्शन करि परिबो फ्यूचर इंसिडेंट गुडा को बा से अनुमान लगे परिबो को मैं कहूचे हंच क्रिएट करि परिबो साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करि परिबो एनालॉजिकल रीजनिंग कोन ना सिमिलरिटी आधार रे से कंपैरिजन करि परिबो चंद्रमा परि मुख आमे कहूचे कि मो हार्ट टा पंप भलिया गति करूची बा से भलिया परफॉर्मेंस करूची एई भली जो सिमिलरिटी को आधार करी से कंपैरिजन करि परिबो बा एनालॉजी लगेई परिबो डिडक्टिव तुम जानि जेमति इंडक्टिव हला पर्टिकुलर टू जनरल आड़ को से गति करि परिबो डिडक्टिव हला कोन ना जनरल टू पर्टिकुलर बा स्पेसिफिक आड़ को से गति करिवो मनीष मरणशील एटा हला गोटे जनरल जिनसटे से तापरे गोटे गोटे कहबो राम होची मनीष राम मृत्युवरण करे कि सक्रेटिस होची गोटे मनीष सक्रेटिस मृत्युवरण करे तेणु करे हम कहि परिया मनीष होची मरणशील एई भली भाव जो डिडक्टिव रीजनिंग हला हम कहचे ऑल ह्यूमन्स आर मोर्टल सक्रेटिस इज ए ह्यूमन देयरफॉर सक्रेटिस इज इमोर्टल त्रिभुजर तीन कोण समष्टि 180 डिग्री तापर से त्रिभुज करिवो कहबो एई कोण होची एतिकी एई कोण एतिकी तेणु करे त्रिभुजर तीन कोण समष्टि 180 डिग्री तेणुकर आम आगे जनरल गोटे जिनस जनरल आइडिया तापर आम जा स्पेसिफिक कनक्लूजन आड़ को जोटा को डिडक्टिव रीजनिंग आम कहूचे जिनस तुम पे मन रखि तो मैंने गुड़ा कौन बुझा खाली मन रख कौ स्टेज रे कोटा आसुची प्री ऑपरेशनल ट्रांसडक्टिव कंक्रीट ऑपरेशनल इंडक्टिव आउ ट्रांजिटिविटी फॉर्मल ऑपरेशनल हाइपोथेटिकल रीजनिंग एनालॉजिकल रीजनिंग आउ डिडक्टिव रीजनिंग ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स आम जो पिता माता रहिले बा तांकर जे वंशधर रहिले मां का वंशधर होंतु कि बापांकर वंशधर होंतु सेमानक पाखरु तांकर जो पिला मान रहिले ऑफस्प्रिंग मान रहिले सेमानक पाखु जो गुण गुडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहूचे जो गुण गुडिक बा जो ट्रेड्स गुडाक ट्रांसमिशन होउची ताको हम कोन कहिबा जेमति कि तुम हेयर रो कलर हेगला तुम बॉडी रो कलर हेगला तुमर इंटेलिजेंस हेगला तुमर फिजिकल स्ट्रक्चर हेगला तुमर आमे कहि परिबा इंटेलिजेंस इनेट पावर कैरेक्टर ए जो जिंस गुडी को ऊपर प्रभाव पडुची तो कमे कोन कहबा तो कमे वंशानुगुण बा हेरिडिटी बोली कहबा तो वंशानुगुण बा हेरिडिटी कोन ना सर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स हमें कहबा फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स ताको कुआ जाय नॉर्मली भी हमें कहो नॉर्मली हमें कहि परिबा passing of traits माने कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहूचे traits from parents सो पेरेंट्स मान पाखरु जो ट्रेड्स बा गुणावली गुडी को हम पाखु को आसुची ताको हमें कहि परिबा हेरिडिटी बा वंशानुगुण सर आपण कहि परिबे कोन कोन इन्फ्लुएंस होउची हेरिडिटी द्वारा हेरिडिटी डिटरमाइन सेक्स
ପିଲାର ଜେଣ୍ଡର କଣ ହବ ବା ସେକ୍ସ ପିଲାର ସେକ୍ସ କଣ ହବ ସେଟା ଜେଣ୍ଡରଟା ହେଲା ଗୋଟେ সোশিয়াল ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ ସେକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସେକ୍ସଟା କଣ ହବ ସେଟା କି ଡିଟରମାଇନ କରେ ନା ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଡିଟରମାଇନ କରେ ତ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପमेंट କାହା କାହାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ହେରିଡିଟି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ତମାନେ ସାର୍ ହେରିଡିଟି ତ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସିଲାବସ ରେ ଏଥରକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ନଥିଲା LTR ମେନ୍ସ ରେ ପଚାରିଥିଲା ତ ତେଣୁ କରି ତମମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମନେ ରଖ ତମମାନେ କାହାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ करे ना सर फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे हेरिडिटी इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट आउ कहा पर इन्फ्लुएंस करे इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस हमर बुद्धि ऊपर मध्य हेरिडिटी रो प्रभाव पड़ी थाए आउ कहा पर बॉडी स्ट्रक्चर आउ कहा पर प्रभाव पकाय पिले ना सर कलर ऑफ आई एंड ए स्किन कि हम स्किन रो कोन कलर हबो आई रो कोन कलर हबो हम मानकर इनेट पावर ऊपर मध्य प्रभाव पड़ी थाए केतेटा जिनस ऊपर तुम मानकर कहार ना हेरिडिटी बा वंशानुगुणर प्रभाव पड़ता है तमन मन रखिथिबो लर्निंग तमन को मु कहिछि लर्निंग होछि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर व्यवहार रे स्थायी परिवर्तन होछि कोन ना शिक्षण मैच्युरेशन कोन ना सर एज स्पेसिफिक नेचुरल डेवलपमेंट ए स्पेसिफिक नेचुरल एंड इंटरनल डेवलपमेंट मन रखिबो निर्दिष्ट बयस रे घटुथिबा अंतः एवं स्वाभाविक परिवर्तन होछि परिपक्वता Question number 3 play. Which of the following cognitive constructivism does not depends on? पिले cognitive constructivism कहा ऊपर निर्भर करी न थाए आंसर कर रे पिले पिले यदि हमें constructivism को दी भाग रे भाग करिवा गोटे हला कोन त मानकर ना गोटे हला सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ गोटे हला कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर हमें काहा कहूचे ना ले भाइगोट्स क्यों हमें कहूचे सेमती कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर हमें काहा कहइबा ना सर जीन पियाजे को हमें कहिबा तो जो जीन पियाजे रहिले पियाजेंकर पिले कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रे पिलार एक्सपीरियंस को हमें इंपोर्टेंस दउचे कारण से कहउचंती लर्नर नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन केमिति करे ना थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ए प्रायर नॉलेज पूर्व अनुभूति एवं व्यक्तिगत अनुभूति माध्यम रे ज्ञान रो गठन करथाय तो एटा ठीक अछि इनक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड भी ठीक अछि कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड ऊपर ए माने मध्ये इंपोर्टेंस होचंदी सेटा मध्ये ठीक अछि किंतु एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड ता ऊपर ए माने गुरुत्व आरोप करू नाहांती कल्चर एनवायरनमेंट सोशल इंटरेक्शन आ ऊपर ए मानकर अधिक गुरुत्व आरोप नाही तो सेही दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम मानकर पिले कोन ना करेक्ट आंसर पिले एक्सटेंशन कर दबा पिले जेतले कॉग्निटिविज्म रो असम्पशन छोड़ा त मन मु कहितली केतरा असम्पशन कहितली त मानकर मन थिबो कि नाही बा जेतबेले मु तो मानक भाइगोट्स्की आ जेतबेले जीन पियाजे कथा कहितली तांको भितर मध्ये डिफरेंस करके जो कहितली से कथा त मानकर मन थिबो कि नाही मन थिबो जेतबेले कहूची कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रे लर्नर मान सबले कोन थांती ना एक्टिव मन रखथिबे केतरा पॉइंट पिले लर्नर्स आर एक्टिव यदि लर्नर्स एक्टिव रहिला ताले लर्निंग होउची कोन ना सर लर्निंग होउची एक्टिव शिक्षार्थी माने सक्रिय भाव रे शिक्षण प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिथांती आउ गोटे परीक्षा 2022 रे तुम मानकर आरएसटी रे पचारथिला कि कॉग्निटिविज्म रे गोटे भलो एस्पेक्ट हला कोन ना से माने इंटरनल कॉग्निशन ऊपर बेसी गुरुत्व आरोप करंती शिक्षण प्रक्रिया रे इंटरनल कॉग्निशन इन टर्म्स ऑफ तार थॉट थिंकिंग प्रोसेस इमेजिनेशन ता ऊपर बेसी गुरुत्व आरोप करंती मेंटल रिप्रेजेंटेशन केमी से फॉर्मेशन कर ता ऊपर बेसी गुरुत्व आरोप करंती ए केतरा दिन सब तुम मन रखिबो ना रोल ऑफ इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस
Role of internal cognitive process, formation of a mental representation, ତାପରେ କ'ଣ ପିଲେ ନଲେଜ କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ନା ସାର୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଯେତେବେଳେ ଲେ ଭାଇକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନଲେଜ କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥ୍ରୁରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନଲେଜ ଇଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା knowledge is constructed individually ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ତାର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ଆଧାରରେ ନଲେଜ କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରେ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେନ୍ ପିଆଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ନର୍ସ ସାର୍ କ'ଣ ନା ସଲିଟାରୀ ଲର୍ନର୍ସ କ'ଣ ସଲିଟାରୀ ଲର୍ନର୍ସ ପିଲେ ନା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଲେ ଭାଇଗର ଶିଖୁଛନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେସନ କୋଲାବୋରେସନ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିଖିଥାଏ ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଲାବୋରେସନ ସପୋର୍ଟ ଗାଇଡାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଭାଇଗର ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା ପିଲା ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ସଲିଟାରୀ ଭାବରେ ବା ନିଜ ଓନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଲର୍ନ କରିବ ତ ସଲିଟାରୀ ଲର୍ନର ବା ସଲିଟାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଏଲୋନ୍ ଏକୁଟିଆ ଶିଖିବ କେମିତି ନା ଓନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଥ୍ରୋରେ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ଏ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲ କି ଲର୍ନର ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରନ୍ତି ରୋଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନାଲ କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି ଏମାନେ ପିଲାର ଥିଙ୍କିଂ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇମାଜିନେସନ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବା ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବ ଆମେ କହୁଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିସିଭ କରିବ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରିଟ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ପିଲା ନଲେଜଟା କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୁଏ ନଲେଜ ଇଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଥ୍ରୋରେ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୁଏ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଲର୍ନର ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେ ରହିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଲିଟାରୀ ଲର୍ନର୍ସ ସେମାନେ ଏଲୋନଲି ବା ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରିକି ନିଜର ପ୍ରାୟର ନଲେଜକୁ ଆଧାର କରି ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିପାରିବେ क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following is not related to child centered teaching and learning कोटा शिक्षार्थी केंद्रिक आधु कोटा पिले शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान शिक्षण सहित संबंधित नुहे बा जड़ित नुहे नॉट रिलेटेड आमे कहबा तो नॉट रिलेटेड पचारछि माने तमे देखि दबा पिले शिक्षार्थी केंद्रिक हेले कोन पिला माननकु अपॉर्चुनिटी दबो पिला माननकु स्वाधीनता दबो पिला माने होचंती सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट दबो तांको कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्टेंस दबो साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स को इंपोर्टेंस दबो टीचर गोटे स्टेज सेटर गोटे फैसिलिटेटर भलिया काम करिवो ताहले पिलांकर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंपोर्टेंस दबा पिलार सर्वांगीन विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट को हमें गुरुत्व करिबा पिला को सो शिक्षण पे हमें प्रोत्साहित करिबा कारण सेठी आमे पिला को पढ़ेबा आमे पिला को बुझेबा ता अपेक्षा पिला निजे पढ़िबो निजे बुझिबो ता ऊपर गुरुत्व आरोप करिबा एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग पिले जेतेबेले आमे टीचर सेंटेड अप्रोच कथा कहउथले सेतेबेले कहउथले आमे टीचिंग ऊपर इंपोर्टेंस दबा किंतु जेतेबेले लर्नर सेंटेड कथा आसी गला सेतेबेले आमे शिफ्ट हे गले क्वाड को ना टीचिंग टू लर्निंग तो एडी जेदु टीचिंग देछि तो टीचिंग को आमे आ इंपोर्टेंस दबानी कोडी ना तुम मानकर चाइल्ड सेंटेड टीचिंग लर्निंग रे आमे टीचिंग रु शिफ्ट अप कोडी गहिचे ना लर्निंग को शिफ्ट अप हेचे तेणुकरी क्लासरूम टीचिंग ये आम टीचिंग दबा अपेक्षा आकु गुरुत्व दबा अपेक्षा पिला केमिति लर्न करिवो ता उपरे गुरुत्व दबा पिला केमिति निजे एक्सप्लोर करिवो निजे लर्न करिवो निजे अनुभूति माध्यम रे एनवायरनमेंट रे से केमिति सिखि पारिवो ता उपरे आमे गुरुत्व दबा टीचर केवल सेठी कोन करिवो टीचिंग अपेक्षा स्टेज को सजेई दबो से होची स्टेज सेटर से होची फैसिलिटेटर से मार्गदर्शक भलिया काम करिवो ठीक है स्टेज सेटर बा फैसिलिटेटर
से दृष्टिकोण ऑप्शन डी है पिले तुम मानकर कौन ना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पिले आंसर करो व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन जो दी प्रकार मोटिवेशन अच्छी गोटे बाह्य अभिप्रेरणा गोटे अंतः अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक बा जोड़ा आम कहे एक्सटर्नाल मोटिवेशन आ गोटे अच्छी कौन ना इंट्रिजिक बा इंट्रिजिक बा इंटरनाल मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंजिक मा एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन पिले कोटा आसीबो ना एक्सटर्नल मोटिवेशन भितरे आंसर कर पिले। तुम मान सहज कोटा तुम जान सर प्रेज हो प्राइज हो रेकग्निशन हो एगुड़ा हूँ कौन ना एगुड़ा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स आउ एक्सटर्नल फैक्टर्स होगला सेगुड़ा क्या भितर ना एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन भितर किंतु गोटे पिलार इंटरेस्ट सेटा केबे हेले एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन नुह सेटा हला इंट्रिजिक मोटिवेशन तेणुकर आंसर कौन ना ऑप्शन डी हूँ तुम मानकर करेक्ट आंसर। तुम माने मन रखिथियो पिले जेतेबेले मोटिवेशन टा जदि मोटिवेशन टा पर्सनल सैटिस्फैक्शन ओरिएंटेड जदि मोटिवेशन टा फन ओरिएंटेड जदि तुमे से घटना गुडी को एंजॉय करूछ दैट इज एंजॉयबल इट इज प्लेजरेबल ताहले सेई भली मोटिवेशन को आमे कहिबा कोन ना इंटरनल मोटिवेशन बा ताकू इंट्रिजिक मोटिवेशन आको में कोन कहिबा ना इंटरनल मोटिवेशन बोली कहिबा बा इंट्रिजिक मोटिवेशन बोली कहिबा। सर मते भलो लागे बोली मु क्रिकेट खेले मते खुशी लागे मते कि बाहरु कि कहूनी कि 100 टका देबी चल क्रिकेट खेलिबू 50 टका देबी ताले यदि 50 टका पाई मु क्रिकेट खेलुची ताले सेटा हे जिवो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। तेणु जेतेबेले मोटिवेशन टा तुम मानकु पर्सनल सैटिस्फैक्शन दउची दैट इज एंजॉयबल इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवार्ड और पनिशमेंट ताहले सेई भली मोटिवेशन को हमें कहबा इंट्रिजिक मोटिवेशन। जदि कोनोसी कार्य तमे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवार्ड और पनिशमेंट रिकॉग्निशन प्राइज प्रेज मनी ए आधार रे करूछ ताल सेटा हे जिवो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। एटा तमने टिके देखि रखियो माको एक्सटेंशन कर सरलेनी आ तमनु कहू नाही। क्वेश्चन नंबर 6 पिले what type of evaluation should be done to know if a child is fit for admission into class with RHT कि गोटे क्लास रे एडमिशन पई गोटे चाइल्ड फिट अछि कि नाही हम जानिबा को चाहूछे गोटे जॉब पई गोटे पिला फिट अछि कि नाही हम जानिबा को चाहूछे गोटे कोर्स रे ताकू एनरोल करिया पई से पिला फिट अछि कि नाही हम जानिबा को चाहूछे ताले को प्रकार आमे करिबा टेस्ट पिले तो मानकू पूर्व क्लास रे ही कहउथली ना आमे गोटे प्लेयर एंट्री बिहेवियर जानिबा पई एंट्री बिहेवियर जानिबा पई बिगिनिंग समय रे गोटे प्रकार आमे कोन करथाउ ना इवैल्यूएशन करिथाउ कोन ना सेटा हला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टू नो द एंट्री बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन टू नो द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस आमे कहूचे से राइट प्लेस पई से राइट पर्सन कि नुही जानिबा पई आमे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टा करिथाउ। मन रखतियो पिले एंट्री बिहेवियर को चेक करिया पई एथर तुम पचाला एडमिशन पई नेक्स्ट पचारि पारे तुम मानकू कि जॉब पई कि कोर्स पई ताहले तुम मानकर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आ फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव तुम माने जानिथिबो फॉर्मेटिव हैला मॉनिटर ओरिएंटेड फीडबैक ओरिएंटेड प्रोग्रेस ओरिएंटेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हम करूचे डायग्नोस्टिक हैला कोन पिले एटा हम बिगिनिंग समय रे करूचे काहे कि ना पिला मानकर स्वट मन रखियो स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स गुडा को जानिबा पई आ ताको दूरीकरण करिया पई समेटिव जानुचे तुम माने एट द एंड रे कोर्स एंड रे हम करूचे काहे कि करूचे ना पिला मानकू सर्टिफिकेट दवा पई ग्रेड दवा पई इफेक्टिवनेस चेक करिया पई मास्टरी चेक करिया पई तांकर वैल्यू जजमेंट करिया पई। Question number 7 पिले what language should the teacher use while teaching scheduled tribe students so as to meet their language problems तांकर भाषागत समस्या को दूरीकरण करिया पई शिक्षक आदरु केउ प्रकार रो गोटे आमे कहि परिबा
टेक्निक्स को फॉलो करि परिबे को प्रकार भाषार व्यवहार से करि परिबे पिला जो भाषा व्यवहार करूची ताकू व्यवहार करिवे ना गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज को व्यवहार करिवे ना गोटे बुक रे जो लैंग्वेज अछि ताकू व्यवहार करिवे ना बोथ बुक आ तांकर स्पोकन लैंग्वेज ताकू व्यवहार करिवे तो ये तुम आंसर बहुत सिंपल कारण से जो भाषा कथा होती से पिला मानकर जो लोकल लैंग्वेज अच्छी रिजनल लैंग्वेज अच्छी ताकू सहित बुक लैंग्वेज को रिलेट करके से पढ़ेबा को पड़ो टीचर मान जदि से केवल बुक लैंग्वेज को पढ़ेबो ताहले आमे कौन को एडी कौन मिस कले ना तांकर कॉन्टेक्स्ट को आमे मिक्स कर देले तेणुक तांकर कॉन्टेक्स्ट सहित आमर जो बुक अच्छी से बुक को रिलेट करके आमको पढ़ेबा को पड़ो ठीक है पिले कारण कॉन्टेक्स्ट जदि लर्निंग टा कॉन्टेक्चुअल न होची ताले पिला को भल लागबनी पिला बुझ परिबेनी पिला मानकर इंटरेस्ट आसीबो नाही क्वेश्चन नंबर 8 पिले ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन तीनटा डायमेंशन को नै ब्लूप्रिंट कथा आसला माने शिक्षा शास्त्र पिला केबे हेले भूल करके आसीबेनी से ब्लूप्रिंट रो क्वेश्चन देखु देखु तो आंसर करिवे ब्लूप्रिंट 3 डायमेंशनल चार्ट तो मानु कहितली कोन 3 डायमेंशनल चार्ट तीनटा एरिया गोटे हला ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आउट हला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बा फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आ गोटे हला कंटेंट ए तीनटा एरिया तो मानकर ब्लूप्रिंट रे ही थाए तेनगुर तो हम 3 डायमेंशनल चार्ट बोली कहूचे तो ऑप्शन ए तुम मानकर राइट करेक्ट आंसर आउ तीनटा ऑप्शन को हम जीवार आवश्यकता नाही क्वेश्चन नंबर 9 प्ले क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम मानकर मु डिस्कशन करैछि व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट आदर कोटा गोटे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट नुहे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हमें विभिन्न भागर भाग करथिले माने दुईटा मेजर कैटेगरी करथिले कोन बिले ना तो माने मन रखिबो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हमें दुईटा कैटेगरी करथिले कोन बिले ना गोटे तुम मानकर हला सप्लाई और कंप्लीशन टाइप मन रखिबो आको सप्लाई और कंप्लीशन टाइप आ गोटे पिले कोन ना तुम मानकर रिकॉग्निशन टाइप और सिलेक्शन टाइप रिकॉग्निशन और सिलेक्शन टाइप ठीक है पिले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हमें दी बार व्यक्त कले कोन ना गोटे हला सप्लाई और कंप्लीशन टाइप आ गोटे हला रिकॉग्निशन और सिलेक्शन टाइप तो तुम मानकर ए जो सप्लाई और कंप्लीशन टाइप रहिला ए सप्लाई और कंप्लीशन टाइप रे तुम मानकर कोन आस्तला ना शॉर्ट आंसर आसुतला शॉर्ट आंसर टाइप आस्तला आ गोटे आस्तला कोन ना तुम मानकर कंप्लीशन टाइप शॉर्ट आंसर टाइप कौन पिले शॉर्ट आंसर टाइप को जो हुइज द फादर ऑफ नेशन तुमन पचारिबी कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा तुमन पचारिबी एटा हला शॉर्ट आंसर टाइप आ शॉर्ट आंसर टाइप को मतलब तुमने कहि परिबो कोन ना रिकॉल टाइप से बळे कंप्लीशन माने कोन जोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कहि परिबो कंप्लीशन माने कंप्लीट करिवे फिल इन द ब्लैंक टाइप फिल इन द ब्लैंक रे तमन ए जेमति नॉर्मल क्वेश्चन पचारछ हमें कि बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय डैश ए भली बारे क्वेश्चन तमन पचारले एटा फिल इन द ब्लैंक बा कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जोथरे तमन गोटे आंसर को सप्लाई करिवो फांका थिबो गैप थिबो तमन ताको सप्लाई करिवो तापर आसले कोन ना रिकॉग्निशन टाइप बा सिलेक्शन टाइप रे तीनटा तमनकर रहिछि कोन कोन गोटे हला ट्रू आउ फॉल्स मेजर तीनटा आमे कहूछु पिले कैटेगराइजेशन गोटे हला ट्रू फॉल्स बा ताको अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टाइप मध्ये कुआ जाय एटा मन रखियो ट्रू फॉल्स बा अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टाइप आ गोटे हला तुमनकर मैचिंग आ गोटे हला तुमनकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है ना तो एई तुमनकर कैटेगराइजेशन मन रख कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को आमे दीटा ब्रॉड कैटेगरी कले गोटे हला सप्लाई बा कंप्लीशन टाइप आ गोटे हला रिकॉग्निशन बा सिलेक्शन टाइप सप्लाई बा कंप्लीशन टाइप रे हमरा असला शॉर्ट आंसर जोटो को हमें रिकॉल टाइप कहूचे आ गोटे हला कंप्लीशन जोटो को हमें फिल इन द ब्लैंक्स कहूचे से बढिया भाबरे तुमनकर ट्रू फॉल्स असला ट्रू फॉल्स जोटो को हमें अल्टरनेटिव टाइप्स कहूचे आ तुमनकर मैचिंग आ गोटे हला एमसीक्यू सेमति तुमनकर पिले जो एसे टाइप रहिला एसे टाइप टेस्ट को मध्य दीटा भाग रे हम विभक्त करथाउ
एसे टाइप टेस्ट को मध्य दीटा कैटेगोराइजेशन आमे करि परिबा कोन कोन ना गोटे कैटेगोराइजेशन होची तुम मानकर रिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप आ गोटे कोन ना आ गोटे तुम मानकर एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप तुम माने बुझिथिबो जेतले रेस्ट्रिक्टेड कोच माने ताहे तुमको रेस्ट्रिक्शन रहिगला लिमिट रहिगला कंटेंट और रेस्पॉन्स को आधार करी सेठी तुमको फ्रीडम न मिललानी आंसर दबारे मु तुमने कहबी कि मौलिक शिक्षार पांचटा फीचर्स को डिस्कशन कर मु कहबी तुमको कि जेकोस गोटे क्वेश्चन पचारे मु भाइगोट्स्कींकर तांकर आइडिया को तुमे 100टा शब्द मध्य लेख तो ये रेस्ट्रिक्शन रहिला रेस्ट्रिक्टेड टाइप रे किंतु एक्सटेंडेड टाइप रे सेठी तुमको पूरा फ्रीडम दिया जिवो तुमको पूरा आमे कहि परिबा अपॉर्चुनिटी दिया जिवो तुम मानकर आंसर को प्रोवाइड कर परिबो मु कोन से लिमिटेशन लगेबी नाही मु कहबिनी कि 100टा शब्द भीतर लेख कि 5टा फीचर लेख सेठी तुमको कहबी कि तुम माने भाइगोट्स्कींकर बा जहा तत्व गुडी कहछि सेगुडा को उल्लेख कर सेटाला एक्सटेंडेड तो ये पचार कोटा गोटे तुम मानकर रेकग्निशन टाइप भितर नुहे ना सर सेंटेंस कंप्लीशन टा गोटे रेकग्निशन भितर नुहे कारण सेंटेंस कंप्लीशन टा काहा भितर तो सेटा हला सप्लाई बा कंप्लीशन टाइप भितर क्वेश्चन नंबर 10 प्ले व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी पेडागोजी कहले कोन बुझुचो पेडागोजी हला हाउ टू लीड द चाइल्ड पिला को आमे केमती लीड करिबा आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग वे द टीचर टीचेस इन द क्लासरूम ब्रॉड प्रिंसिपल्स फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ टीचिंग तो ये कौन देछि हमरो साइंस ऑफ टीचिंग माने पढ़ेवा पे आमे पिला मानन को पढ़ेवा समय रे आमे को प्रकार रो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स छोड़ा को फॉलो करूचे पिला मानन को पढ़ेवा समय रे को कला कौशल रो व्यवहार करूचे ये तुम मानकर पेडागोजी भितर आसीबो ठीक है पिले आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट जेहेतु ये साइंस ऑफ टीचिंग देछि से दृष्टिकोण आमे को कंसीडर कर परिबा क्वेश्चन नंबर 11 प्ले the desire for self fulfillment to realize one's own potentialities comes under जेतबेले आमे निज भीतर थिबा गुणावली बा पोटेंशियलिटीज को रियलाइजेशन करूचे सेल्फ फुलफिलमेंट को आधार करी तक हमें कौन कहबा तक हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहबा व्हिच इज रिलेटेड टू कार्ल रोजर्स ठीक है प्ले नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन नंबर 12 which quality is not found in a good test गोटे गुड टेस्ट रे हमें को क्वालिटी पाई न थाउ गुड टेस्ट रो जो चारिटा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स रहला कोन वैलिडिटी यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी आउटला ऑब्जेक्टिविटी ए चारिटा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तुमन को मन रखिया पड़िबो फ्लेक्सिबिलिटी सेटा तुमनकर गोटे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बा मेजर आमे कहि परिबा गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भीतर आसीबो नाही किंतु वैलिडिटी आमे कहूचे व्हाट द टेस्ट ऑट टू मेजर व्हाट द टेस्ट सपोज टू मेजर इफ द टेस्ट मेजर देन द टेस्ट इज वैलिड टेस्ट जहाँ उद्देश्य अच्छी जहाँ लक्ष्य अच्छी जहाँ चाहूचे से जिनस को सी मेजर करि पारला त से टेस्ट को वैलिड टेस्ट बोली कहबा ट्रुथफुलनेस आमे जोडा कहूचे यूजेबिलिटी हला कि से टेस्ट टाइम अनुसार रिसोर्सेस अनुसार भल भाव में यूजफुल होउछि कि नाइ अधिक पैसा खर्च होउथिबो अधिक लोक दरकार पड़ जाउथिबो पिला इंस्ट्रक्शन बुझी पर नथिबो से दृष्टिकोण हम कहबा एटा गोटे यूजफुल टेस्ट नुहे तब आसला रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट डिपेंडेबिलिटी ऑफ रिजल्ट कि गोटे रिजल्ट जतले कंसिस्टेंटली हमको सेम आंसर प्रोवाइड करूछि बा सेम रिजल्ट हमको दउछि गोटे टेस्ट तले तक हम कहबा से टेस्ट होउछि रिलायबल बोली ठीक लागले क्वेश्चन नंबर 13 which is not related with the objectives of motivation अभिप्रेरणार उद्देश्य सहित कोउटा जड़ित नुहे बा एसोसिएटेड नुहे कोरे पिले मोटिवेशन आम बिहेवियर को एनर्जाइज करे एनर्जाइज इन टर्म्स ऑफ इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ये हमको शक्ति प्रदान करे ठीक अछि स्टेबलाइज द बिहेवियर स्टेबलाइज माने हम कोन कहूची पिले स्टेबलाइज ये हमको अनचेंजिंग गोट फिक्स्ड रखे ये हमको स्टडी अनुसार रखे स्टेबलाइज कहला माने कोन ना नो चेंज
किंतु मोटिवेशन आम कहली आमको गतिशील कराए मोटिवेशन को सूत्र आसी ना गोटे लाटिन वर्ड रू आसी कौन ना मुव्रे माने कौन ना जोटा हमको मुव करे जोटा हमको गतिशील कराए मोटिवेशन गोटे लाटिन वर्ड मुव्रे रू आसी जार अर्थ टू मुव जी आमको गतिशील कराउछि किंतु स्टेबलाइज करिया माने कौन ये तो मु स्टेबलाइज करदेला गोटे जगह स्थिर रखिदेला चेंज किछि हला नै तेणुक एटा तुम मानकर कारण आम कहूचे बिहेवियर टा मोटिवेशन जिते आमर अभिप्रेरणा आसूची आम बिहेवियर टा केबे हेले स्टेडी है अनचेंजिंग है फिक्स्ड है कि रहिबो नाही ये आम बिहेवियर को स्टिमुलेट बिहेवियर ये आम बिहेवियर को एक्टिवेट करिवो मु केतरा टर्म तो मानु कहितली स्टिमुलेट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एनकरेज करिवो एनर्जाइज करिवो एक्टिवेट करिवो डिरेक्ट करिवो एई केतरा टर्म मन रख पिले मोटिवेशन आम बिहेवियर को एनर्जाइज करे आम बिहेवियर को स्टेबलाइज नुहे पिले स्टिमुलेट करे एक्टिवेट करे दिग निर्देश मध्य करे डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल आमर जहाँ लक्ष्य उद्देश्य अछि ताको हासिल करिया पई मध्य ठीक है ना जो चारिटा पॉइंट तो मानक मन रखा पड़ो कौन ना एनर्जाइज द बिहेवियर स्टिमुलेट द बिहेवियर एक्टिवेट द बिहेवियर एंड डायरेक्ट द बिहेवियर क्वेश्चन नंबर 14 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ए क्वेश्चन तुम पिले पचारि थिला मु तुम जो फास्ट मॉक टेस्ट करूली जो 35टा मॉक टेस्ट से समय क्वेश्चन गुड़ा करूली तुम तुम रिसेंट जो परीक्षा गला से क्वेश्चन पचार आदर कोटा बोथ क्वालिटेटिव आ बोथ क्वांटिटेटिव बा क्वालिटेटिव माने जोटा आम कहूचे गुणात्मक क्वांटिटेटिव है जोटा आम कहूचे परिमाणात्मक जोटा क्वांटिफाई करबा नंबर रे क्वालिटेटिव है व्हाई ओरिएंटेड आम कहूचे तो ये इभालुएसन टा हला बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पिले ऑब्जर्वेशन टा हला तुम मानकर क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन हेटा तुम मानकर क्वांटिटेटिव बा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी गुड़ा रहिला सेटा तुम मानकर कोन ना क्वांटिटेटिव इन नेचर आउ तुम मानकर स्टडी रहिला सेटा हला तुम मानकर क्वालिटेटिव तो एडी तुम मानकर आंसर कोन ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 पिले which method evaluation is effective for assessment of both curricular and co-curricular achievements आधर को प्रकार इवालुएशन रो मेथड रे आमे बोथ करिकुलर आ को करिकुलर एरिया को भलो भाबरे असेस करि परिबा आंसर कर पिले स्कोलास्टिक या को स्कोलास्टिक एरिया को भलो भाबरे की असेस करि परिबो ना सर हला कॉम्प्रिहेंसिव जो सीसी रो तुम मान कर रहिला कंटीन्यूअस आउ कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएशन से जो कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएशन आमे कोन कहूचे ना बोथ करिकुलर आउ को करिकुलर एरिया को आमे कोन करबा असेस करबा ब्रॉड एरिया को पिलांकर असेस करबा पिलांकर ऑल राउंड डेवलपमेंट होउची कि नै केवल जे कंटेंट एरिया सिलेबस को पास कर देला ता नहे पिला मानकर जो डिफरेंट टाइप को करिकुलर एक्टिविटी रहला नाच गीत खेल कूद पिला भल से करि परछ कि नै ताकू मध्य पिला आमे असेस करबा तेणुक कम्प्रेहेंसिवनेस कहले कौन देखुचे पिले ना बोथ करिकुलर को देखुचे एंड को करिकुलर को देखुचे बा बोथ स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया को देखुचे एगुडा तुमने जानिछ पिले फॉर्मेटिव तुमने जानिछ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करा जाए प्रोग्रेसिव ओरिएंटेड फीडबैक ओरिएंटेड मॉनिटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एप्टीट्यूड टेस्ट तुमने जानिछ पिला मानकर फ्यूचर पोटेंशियल पिला मानकर जहा पोटेंशियलिटीज अछि पिला मानकर जहा एबिलिटी कैपेबिलिटी अछि ताकू निर्धारण करिबा एवं से अनुसार से मानकर फ्यूचर जहा होबो ताकू निर्धारण करिबा सेटा ला तुम मानकर एप्टीट्यूड टेस्ट तुम माने टीचर होबा पई एलिजिबल कि नाही जानिया पे हमें तुम मानकर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट को करूछे तो माने रिसर्च करिया पे एलिजिबल कि न होय जानिया पे हमें रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करूछे आ डायग्नोस्टिक तो माने जानिथिबो हमें पिला मानकर इश्यूज प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करिया पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट बाय इवैल्यूएशन करथाओ क्वेश्चन नंबर 16 प्ले व्हिच वन इज टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आधु कोटा शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया गोटे पिले टीचर सेंटर्ड देन हु इज द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना सर टीचर होची सेंटर पिला होचंदी कोन ना पैसिव रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन वन वे टीचिंग हबो
टीचर रो कंट्रोल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहिबो टीचर गोटे डोमिनेंट रोल प्ले करिवो गोटे अथॉरिटेटिव रोल प्ले करिवो तो टीचर सेठी केबे गोटे फैसिलिटेटर हबो नाही टीचर सेठी केबे आमे कहि परिया पिला को हेल्प करबा सपोर्ट करबा गाइड करबा सुपरवाइज करबा ए काम करबोनी एटा केवल लर्नर सेंटर्ड रे करिवो किंतु टीचर सेंटर्ड कोन टीचर कोन करिवो ना टीचर एक्सप्लेन टीचर एटी एक्सप्लेन करिवो पिला माननकु विभिन्न प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल रो व्यवहार करी पिला केवल पैसिवली रिसीवर पैसिव रिसिपेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आमे कहउतले निष्क्रिय भाव रे टीचर जहा कहिबे सुनिबो ना इंटरेक्शन हबो ना इन्वॉल्वमेंट हबो ना पार्टिसिपेशन हबो तेन करी ऑप्शन बी होची तो मानकर गोटे टीचर सेंटर्ड टीचिंग प्रोसेस रो गोटे पार्ट आमे कहि परिबा गोटे एस्पेक्ट कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 17 पिले एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर ए टाइप ऑफ पिले जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड रहिला तको हमें कोन कहूचे समेटिव असेसमेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशनल टूल बा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड कोन कहि परिबे ना सर एटा हला गोटे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशनल टूल तमानकु एनेक्डोटल रिकॉर्ड कोन मु तमानकु बुझैतिली ना सर ये होची गोटे प्रकार रो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स गोटे इंसिडेंट हो गोटे इवेंट हो ताकू आमे शॉर्ट स्टोरी आकार रे ऑब्जर्वेशन कला पर ताकू आमे लिखि थाउ पिला कर जहा आमे कहि परिबा गोटे क्लासरूम रे आमे कहिया पिला गोटे बहुत भलो परफॉर्मेंस कला पिला गोटे बहुत खेल परफॉर्म भलो कला तो सेही इंसिडेंट गुडा को आमे एनेक्डोटल रिकॉर्ड रे ताकू आमे कोन करू शॉर्ट स्टोरी आकार रे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आकार रे आमे ताकू लिखि के रखि थाउ सो एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज लाइक ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज लाइक रिटन डॉक्यूमेंट आमे कहि परिबा शॉर्ट स्टोरी कहि परिबा व्हिच इज बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट और पर्सनल ऑब्जर्वेशन रादर देन ए साइंटिफिक रिसर्च और एनी साइंटिफिक स्टडी तो एटे तो माने सिंपल मन रखि दो ये होची गोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण माध्यम आमे देखुचे पर्यवेक्षण करूचे तापर आमे गोटे शॉर्टली डिस्क्राइब करूचे बा गोटे कहि परिबो शॉर्ट स्टोरी कहीं क्वालिटेटिव कहीं कहला एटा हम क्वांटिफाई करूने बा एटा हम न्यूमेरिकल डिस्क्राइब करूने एटा हम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन हला गोटे क्वालिटेटिव टूल हम कहूचे बा ये गोटे क्वालिटेटिव से भली भाबरे जते बेले तू मानकर एनेक्डोटल रिकॉर्ड रहिला तो हम जेहेतु पर्यवेक्षण करूचे पर्यवेक्षण करी व्हाई ओरिएंटेड एनालिसिस हम करूचे से दृष्टिकोण रो एठी तो मानकर व्हाट हाउ मच बा क्वांटिफाई कथा एठी कुआ जाऊ नाही से दृष्टिकोण एटा क्वालिटेटिव हम कहि परिबा व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन आदर कोटा गोटे ऑब्जर्वेशन रो टूल पिले नुहे एनेक्डोटल रिकॉर्ड तमे कहलो एथरा हम ऑब्जर्वेशन करिथाउ ये होची तुम मानकर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट और ऑब्जर्वेशन अचीवमेंट टेस्ट टा गोटे ऑब्जर्वेशन नुह ये तो गोटे टू टेस्ट हे गला पिले रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन माध्यम रे चेकलिस्ट तुम ऑब्जर्व कला पर ही चेकलिस्ट रे तुमे ताको प्रोवाइड करो तुमे ऑब्जर्व कला पर ही तुमे रेटिंग दे थाओ किंतु अचीवमेंट टेस्ट रे एडी टेस्ट पिलांकर करा जाय जो टीचर में टेस्ट रहिला जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रहिला ये सब तुम मानकर अचीवमेंट टेस्ट भीतर आसीबो तो एडी तुम मानकर ऑप्शन बी होच पिले कोन ना करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 blueprint is used in preparing the question paper because कहीं कि हमें ब्लूप्रिंट माध्यम रे क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करूचे पिले क्वेश्चन टा इजी हबो सिंपल हबो ना सर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फाइंड देयर प्लेसेस जो कंटेंट गुडा रहिला से कंटेंट अनुसार आमे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ऐड करि परिबा ता सहित हमर जो ऑब्जेक्टिव्स अछि से ऑब्जेक्टिव्स को मध्ये हमें हासिल करि परिबा कंटेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स ए तीनटा एरिया को जे बेसी फोकस करथो तमे देखिबो तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 पिले which is not related to child centered education आदर कोटा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सहित जड़ित नुह बा शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा सहित संबंधित नुहे टीचर आज ए फैसिलिटेटर टीचर आज ए स्टेज सेटर गाइड सपोर्टर एटा हला तुम मानकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रे टीचर टीचेस ए जो आसला टीचर टीचेस टीचर एक्सप्लेन्स कि टीचर एलाबोरेट्स
जो टीचर ये जिन गुड़ा करुच्ची सेटा चाइल्ड सेंटर्ड आसब ना कारण आम चाइल्ड सेंटर्ड बेसी सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करवा टीचर रो हेल्प सपोर्ट को प्रमोट करवा नुहे कि टीचर आमको टीच कर टीचर आमको इंस्ट्रक्ट दब टीचर आमको पढ़ेब यो जिन गुड़ा आम नेग्लेक्ट करवा तो ऑप्शन बी तुम मानकर यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड सहित रिलेटेड नुहे तो पचार कौटा रिलेटेड नुहे ऑप्शन सी देखिए चाइल्ड इज द सेंटर आम जाचे आउ लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस पिलार जहाँ अनुभूति रही आधार में शिक्षणटा होता है तुम मानकर पिले मॉक टेस्ट नंबर 102 रे तुम माने केते स्कोर कल तुम माने 20 रु केते मार्क रखले सेटा मध्ये मेंशन करिवो जहाँ द्वारा तुम मानकर लेवल ऑफ प्रिपरेशन को मु भलो भाबरे जानि क्वेश्चन प्रिपरेशन करि परिबी नेक्स्ट या पिले मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 103 जो तुम मानकर आमे अगेन 20टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा तार एक्सटेंशन करबा यदि को क्वेश्चन डाउट तुम मानकर रहिथिबो तुम माने निश्चय प्रीमियर समय पचारि परियो हम चेष्टा करी ताकू क्लैरिफाई करबा पाए क्वेश्चन नंबर 1 पिले इफ ए टेस्ट गिव्स सेम रिजल्ट पिले whenever it is repeated it is called as जेतेबेले आमे टेस्ट को थरे कंडक्ट करूचे जो रिजल्ट आसुची जदि आमे किछि समय अनुपात रे बा आजि कले पुन 2 दिन पर कले 5 दिन पर कले 10 दिन पर कले जदि आमे जेते थर भी टेस्टटा करूचे जदि सेम रिजल्ट आसुची जदि सेम रिजल्ट आसुची ताहले बा रिपीटेडली सेम रिजल्ट आसुची तक आमे कोन कहिबा कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट डिपेंडेबिलिटी ऑफ रिजल्ट जोड़ा मु तुम कही जदि कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट आसुथिबो से टेस्ट रे ताले आमे कहिबा से टेस्ट रो रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता अछि वैलिडिटी कौन ताहले वैलिडिटी हला आमे जहा चाहूचे जहा ऑब्जेक्टिव जहा सपोज करूचे जहा पर्पस करूचे से अनुसार जदि टेस्ट रिजल्ट देई पारुची ताले कहिबा से टेस्ट रो वैलिडिटी अछि आउ यूजेबिलिटी तो माने जानिछ टेस्टा वास्तव में एप्लीकेबल कि नुहे समय अनुसार कि तुम अर्थ अनुसार रिसोर्सेस अनुसार पर्सन्स अनुसार से टेस्टा यूजफुल कि नुहे जोटा कि यूजेबिलिटी जो गुड टेस्ट रहा से गुड टेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा से कैरेक्टरिस्टिक्स तुम यदि भल भाव देखिबो तुम मानकर रिलायबिलिटी जो इंपोर्टेंट चारिटा कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ए चारिटा जिन तुम माने बेसी गुरुत्व दबो ता सहित कम्प्रेहेंसिवनेस डिस्क्रिमिनेशन एगुडा मध्य ऐड ऑन हे परिबो एवढा तुमको कही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट वैलिडिटी है डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर व्हाट इट इज ऑट टू मेजर व्हाट इट इज वांट्स टू मेजर जदि टेस्टा जहाँ चाहूची जहाँ तार पर्पज अच्छी जहाँ सपोज से करूँ से दिन छुड़ा मेजर करूथिबो तले तक वैलिडिटी बोली कहबा रिलायबिलिटी कौन आर द रिजल्ट कंसिस्टेंट रिजल्टा कंसिस्टेंट रिजल्ट दउची तो हमकू बा ठीक सठिक भाव में रिपीटेडली सेम रिजल्ट दउची तो ऑब्जेक्टिविटी कौन वास्तव में से टेस्टार दीटा प्रकार आम ऑब्जेक्टिविटी को देखुले गोटे है जदि से टेस्ट रिजल्ट को 2 रु अधिक लोक देखती आम इभालुएट करती ताहले से कौन प्रकार डिफरेंशिएशन आसुची कि बा से टेस्ट जो क्वेश्चन प्रिपरेशन करछे से क्वेश्चन रे डबल बैरेट क्वेश्चन बा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन अछि कि जदि से बोली किछि नाही ता कहे टेस्ट रो ऑब्जेक्टिविटी हमर अछि कैन 2 और मोर पीपल administer the test to the same group and get similar result यदि जणे कला गोटे प्रकार जणे यदि इवैल्यूएट कला गोटे प्रकार रिजल्ट आसुची आ गोटे इवैल्यूएट आ गोटे इवैल्यूएट कला आ गोटे प्रकार आसुची ताले हमें से ऑब्जेक्टिविटी ऊपर क्वेश्चन आनी परिबा तो ऑब्जेक्टिविटी कौन ना ये जो तुम मानकर इवैल्यूएटर जो मान रहिले सेथरे बायसनेस आसु नथिबो सेथरे डिफरेंशिएशन आसु नथिबो ता सहित क्वेश्चन जो रहिला से आइटम्स रे एम्बिग्यूटी डबल बैरेल क्वेश्चन एमती किछि आसु नथिबो आउटला एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी बा जोडा तुम यूजेबिलिटी बोली कहउछ यूजेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आमे कहूचे कि कॉस्ट हो टाइम हो एडमिनिस्ट्रेशन हो सेथरे कोनस प्रकार डिफिकल्टी बा समस्या हो नथिबो अधिक पैसा खर्च हो नथिबो अधिक समय जाउ नथिबो इजीली क्विकली से एडमिनिस्ट्रेशन कर पारथिबो टेस्ट को ताले आमे कहया से टेस्ट रो यूजेबिलिटी अछि क्वेश्चन नंबर 2 पिले टीचर नोट्स एंड स्माइल्स कम्स अंडर जेतेबेले तुमको टीचर पढौचंती से स्माइल करूचंती मुंडो को हलौचंती विभिन्न प्रकार गेस्चर से शो करूचंती सो सेगुडा कोन सबु सेगुडा तो सब भर्बाल नुह कहिले सिना तो मानकु वर्ड स्पोकन रे कहिले सेटा भर्बाल हबो जेतो तुम स्माइल कले मुंडो को हलेले एडा सब कोन आसीबो नॉन भर्बाल ताले जेतेबेले तो मानकु स्माइल दउचंती तुमको रीइंफोर्समेंट मिलुची
कि हाँ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ସାର୍ ହଁ କହିଲେ ସାର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଆନ୍ସର କରିବି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପିଲା। ଏଠି ଭର୍ବ ବା ଏଠି ୱାର୍ଡ ବା ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଗେସ୍ଚର ହେଲା, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଲା, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଲା, ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା। ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅକରିଂ ଦ ସେମ୍ ବିହେଭିୟର ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ପୁନର୍ବଳନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଏ ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ବାय B.F. ସ୍କିନର। B.F. ସ୍କିନରଙ୍କର ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ପଜିଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ପନିଶମେଣ୍ଟ, ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ପଜିଟିଭ ଭର୍ବାଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? Question number 3. Pedagogy is the science of teaching. Pedagogy is the art and science of teaching. तो ऑप्शन ए तुमମାନଙ୍କର करेक्ट आंसर। एटा मैं तुमମାନଙ୍କୁ भलसे एक्सटेंशन पिले करिछि। जो एजुएगोगी रहिला तारा ट्रेंड्स रे तीनटा ट्रेंड्स हमर गोटा हला पेडागोजी, गोटा हला एंड्रोगोजी आ गोटा हला ह्यूटोगोगी। पेडागोजी हला कोन ना आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, जोटा को हमें कहूछे पिलांकु पढेबार बा चिल्ड्रन मानकु पढेबार जो कौशल टेक्निक्स ताको हमें पेडागोजी बोली कहूछे। जोथरे टीचर गोटे डोमिनेंट बा इंपोर्टेंट रोल प्ले करिथांती। टीचर हमें कहूछे सब सोर्स रो बा नॉलेज रो से होचंती ग्रंथागार, पावर ऑफ ऑल नॉलेज और सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। हाउ टू लीड द चाइल्ड हमें कहूछे, लीडिंग चाइल्ड बा पिला मानकु पढेबार जो कौशल रहिला ताको हम पेडागोजी बोली कहबा। जोथरे टीचर अधिक डोमिनेंट रोल प्ले करथांती, पिला पैसिव थांती। एंड्रोगोगी हला कोन ना एंड्रोगोगी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग टू adults आमे कहूचे लीडिंग adults, जो थे टीचर और लर्नर कोलाबोरेटली आमे कहूचे बा टीचर और लर्नर एठी मिलित उद्यम रे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा अधिक भाव रे गति करि थाए। जो थे तुमनकर पर्टिकुलरली देखिबो स्कूल कॉलेज मानकर जो टीचिंग रहिला बा तुमनकर जेमति मन कहले एटा यदि प्राइमरी लेवल रे रहिला बा एटा तुमनकर स्कूल लेवल रे रहिला ताहले कॉलेज लेवल रे एंड्रोगोगी आ ह्यूटोगोगी हला आहुरी अपर लेवल रे आमे कहूची यूनिवर्सिटी लेवल रे बा जदि आमे सेल्फ लर्निंग कथा कहबा ताहले ह्यूटोगोगी को आमे जिबा। सो एंड्रोगोगी रे कोन कहूचे ना टीचर गोटे फैसिलिटेटर भलिया काम करे, गोटे गाइड भलिया, गोटे सपोर्टर भलिया काम करे। आ ह्यूटोगोगी हला कोन ना एटा हला आहुरी एडवांस पर्सन आमे कहूचे जोटे सेल्फ डिटरमाइंड आ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कथा कहूचे, जो थे लर्नर इंडिपेंडेंट थाए, स्वाधीन भाव से शिक्षण करि थाए। टीचर सेठी केवल गोटे कोच भलिया गोटे आमे कहि परिबा ताकू जेतेबेले आवश्यकता पड़िबो जदि किछि दरकार पड़ला से टीचर गाइडेंस और सपोर्ट नै परिबो। क्वेश्चन नंबर 4. Who propounded the instrumental conditioning theory of learning? पले instrumental conditioning आमे काहू कहूचे ना operant conditioning को आमे कहूचे instrumental conditioning। operant conditioning, so operant conditioning के देथिले ना B.F. स्किनर देथिले। तो instrumental को काहे को होची पिले इंस्ट्रूमेंटल इन टर्म्स ऑफ हमें कौन कहूचे ऑर्गेनिज्म रो जो एक्शन टा रहिला से एक्शन टा को हमें इंस्ट्रूमेंट भाबे कंसीडर करूचे। इंस्ट्रूमेंटल एक्शन को हमें इंस्ट्रूमेंट काहे कहबा, जो ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियर रहिला तार एक्शन रहिला सेटा गोटे इंस्ट्रूमेंट, सेटा ही रो व्यवहार माध्यम रे बा ता माध्यम रे आमे जहा से डिजायर करूची, जहा से चाहूची से आउटकम टा ताको मिली थाए। जेमति कहबा ऑपरेंट कंडीशनिंग रे जे ऑर्गेनिज्म रहला से बिहेवियर को ऑपरेट करे। जेमति कि सी कोन करिवो पाराटा हो से जो मुसाटा हो जो एक्सपेरिमेंट करूथिले B.F. स्किनर, पारा थंट मारला परे किछि खाद्यटा पड़िबो तो एठी तार जो एक्शन टा रहिला ता बिहेवियर रहिला गोटे इंस्ट्रूमेंट भलिया काम कला गोटे आउटकम बा ताऊ खाद्य मिलिबा पई। से दृष्टिकोण को हम कहूचे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बा ऑपरेंट कंडीशनिंग। बिहेवियर इज ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 पिले according to humanistic approach to learning the human needs are arranged in a hierarchical order. What need is placed at the top? जो need of hierarchy रहिला बा hierarchical need रहिला जोटा तुमनकर अब्राहम मास्लोंकर सेथरे तुमनकर सबटर हाईएस्ट कोटा पिले ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। से hierarchy of needs को जदि हमें अरेंजमेंट करिबा तो मन देखि रखियो प्रथम हला फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तुमको मन रखियो। क्वेश्चन नंबर 6 पिले
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोजर रेफर्स टू रोजर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या भितर कहा भितर आसीबो पिले एटा कंटेंट सेंटर्ड आसीबोनी टीचर सेंटर्ड आसीबोनी प्रोग्राम सेंटर्ड आसीबोनी कोन ना लर्नर सेंटर्ड बा शिक्षार्थी केंद्रिक भितर आसीबो क्वेश्चन नंबर 7 पिले when any conduction unit is ready to conduct for it is to do so is satisfying this statement refers to which law of learning जेतबेले गोटे कंडक्शन यूनिट रेडी थिबो आमे सिंपल अर्थ बुझिबा जदि गोटे शिक्षार्थी जदि रेडी थिबो पाठ पढिबा पाई जदि सेही समय ताको पाठ पढा जाय ताले ता पे सेटा सैटिस्फाइंग हबो बा संतोष प्रदान ताको करिवो ताले से प्रकार रो लॉ टा को लॉ सहित जडित मु तीनटा एस्पेक्ट कहिसली कोथरे ना लॉ ऑफ रेडीनेस रे जदि पिला रेडी थिबो सेही समय रे जदि पिला रेडी अछि सेही समय हम ताको पढौचे ताले सेटा सैटिस्फाइंग हबो ताले सेटा बेटर हबो जदि पिला नॉट रेडी रेडी नाही ताले हम पढौचे ताले एटा अनोइंग हबो सेटा बेटर हबो नाही जदि पिला रेडी अछि आमे पढौने सेटा मध्य बेटर हबो नाही तीनटा जिंस तो मन मन रखिबो लॉ ऑफ रेडीनेस रे तो एटा लॉ ऑफ रेडीनेस बा प्रस्तुति नियम सहित जडित लॉ ऑफ इफेक्ट जोडक हम कहूचे फलाफल नियम आउ लॉ ऑफ यूज आउ डिसयूज एटा तो माने कहूचे काहा भितर आसीबो ना एटा अभ्यास नियम भितर आसीबो बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा लॉ ऑफ प्रैक्टिस भितर आसीबो लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज भितर तीनटा लॉ मन रखिबो लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 पिले which of the following is not teacher centered learning आधुर कोटा शिक्षक केंद्रिक शिक्षण नुहे टीचर सेंटेड हेले एक्सप्लेन करिवा लेक्चर दबा डेमोन्स्ट्रेशन करिवा ये सब टीचर सेंटेड लर्निंग बाय डूइंग हैला तो मानकर कोन लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग ह्यूरिस्टिक लर्निंग बाय ह्यूरिस्टिक मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मेथड ये सब तो मानकर कोथरे ना लर्नर सेंटेड भितर आसीबो तेणुक ऑप्शन ए तु मानकर इज नॉट एसोसिएटेड विथ टीचर सेंटेड लर्निंग क्वेश्चन नंबर 9 प्ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभिप्रेरणार कौन कार्य रही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे पूर्व गोटे क्वेश्चन आम करूले ना अभिप्रेरणा कौन करे ना ये स्टिमुलेट करे आम बिहेवियर को ये आम बिहेवियर को एनर्जाइज करे ये आम बिहेवियर को एक्टिवेट करे ये आम बिहेवियर को आउ कौन करे ना दिग निर्देश करे डायरेक्ट ता सहित ये आम बिहेवियर कौन करे ना रीइनफोर्स करे पुनर्बलन प्रदान करे तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर एक केतरा पॉइंट मन रखियो रे पिले जदि एटा पचारछु गोटे एग्जाम रे नेक्स्ट टाइम पचारि पारे ये बिहेवियर को स्टिमुलेट करे एनर्जाइज करे एक्टिवेट करे डायरेक्ट करे आउ रीइनफोर्स करिथाय क्वेश्चन नंबर 10 पिले कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म कहा ऊपर फोकस करे मन अछि तो एलपीआई आउ कोन डीपीआई हाँ देखिबा इमिटेशन मेमोराइजेशन एगुड़ा कंस्ट्रक्टिविज्म रो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट नुहे द रोल ऑफ लर्नर इन इमेजिनेशन थिंकिंग थॉट प्रोसेस एगुड़ा आम कॉग्निटिविज्म रे बेसी गुरुत्व आरोप करि परिबा कंस्ट्रक्टिविज्म रे नुहे द रोल ऑफ लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस आमे कहते ना पिला नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो केमती ना थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस थ्रू हिज इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन थ्रू सोशल इंटरैक्शन तेणु करी ऑप्शन डी होची तो मानकर करेक्ट आंसर कि आमे कोन करिबा ना कंस्ट्रक्टिविज्म रो कथा जतबेले आसिला ताहाले आमे पिला नॉलेज कंस्ट्रक्टर पिला नॉलेज मेकर आमे कहूचे मीनिंगफुल लर्निंग ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दबा कॉन्टेक्चुअल लर्निंग ऊपर इंपोर्टेंस दबा इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन ऊपर इंपोर्टेंस दबा सोशल इंटरैक्शन ऊपर इंपोर्टेंस दबा सोशल लर्निंग ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दबा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ऊपर लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऊपर इंडिपेंडेंट लर्निंग ऊपर डिस्कशन बेस्ड लर्निंग ऊपर पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड लर्निंग ऊपर आमे बेसी गुरुत्व आरोप करिबा क्वेश्चन नंबर 10 पिले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इज वाइगोट्स्की मत अनुसार सोशल लर्निंग सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक संगठनवाद व सामाजिक रचनावाद कौन हवा उचित पिले एक्वायरिंग न्यू नॉलेज
बेसिंग ऑन द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स जेतबेले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म देला आ कोऑपरेशन देला एडी तुम जानिथिबो कोऑपरेशन गाइडेंस सपोर्ट रेसिप्रोकाल लर्निंग ग्रुप लर्निंग सोशल मीडिएटेड लर्निंग एगुडा तुम मानकर का सहित ना कंस्ट्रक्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बा भाइगोर्सिंग सहित एसोसिएटेड ठीक है ना तो ऑप्शन ए तुम मानकर एटी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पिले सीसी रु पचाला कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स कौन उद्देश्य रही सीसी रो पिले सीसी स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक को भी इंपोर्टेंस दिए ये खाली स्कोलास्टिक देछि तापर भी हमर एडी मोस्ट एप्रोप्रिएट जति हमें देखिबा कोन ना होलिस्टिक डेवलपमेंट आमे सर्वांगीन विकास के गुरुत्व आरोप करे केमती ना बोथ स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक को एरिया को इंक्लूजन करी बा इंक्लूड करी क्वेश्चन नंबर 12 प्ले व्हाट इज नॉट देयर इन ब्लूप्रिंट याथरु कोउटा प्ले ब्लूप्रिंट रे न थाए आंसर करे प्ले weightage to content weightage to type of questions weightage to instructional objectives ए तीनटा जिनस हमर थाई पिले किंतु weightage to difficulty level एटा तुमनकर ब्लूप्रिंट न थाए difficulty level हो discrimination level हो distractor हो एगुडा को आमे कहूचे टेस्टा कंडक्ट करि सरला परे जतबेले इवैल्यूएशन करूचे सेही समय रे ही ए जिनस गुडा को आमे केमति करिथाउ ना आइटम एनालिसिस माध्यम रे तो ऑप्शन बी टा तुम मानकर ब्लूप्रिंट रे न थाए क्वेश्चन नंबर 13 पिले व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओएसएससी आरएसटी जो आरएसटी एग्जाम होची जो एलटीआर एग्जाम होची तुम मानकर किंबा तुम मानकर जो एसएसबी टीजीटी एग्जाम होची ताको हम को एग्जाम भीतर कंसीडर कर परिबा को इवैल्यूएशन भीतर कंसीडर कर परिबा ना श्री होची फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से तुम मानकर वास्तव रे तुम माने टीचर हा पे राइट पर्सन कि नुहे सेटा जानिबो कमे चेष्टा करूचे टू नो वेदर यू आर राइट कैंडिडेट और राइट पर्सन वेदर यू आर फिट फॉर ए टीचर और नॉट सेति पे हमें कोन करूचे ना तुम मानकर टीचर जहा टीचिंग एग्जाम गुडा रहला से गुडा कंडक्ट करूचे क्वेश्चन नंबर 14 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आदरु कोउटा शिक्षण रो वैशिष्ट्य भाबरे हमें कंसीडर करि परिबा नाही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग पिले कोरे कोन कोन सब तो माने मन रखिछ ये होची लक्ष्य प्रणोदित प्रक्रिया गोल डायरेक्टेड हमें कहूचे ये होची कॉम्प्रिहेंसिव इट्स द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग ट्रायल एंड एरर विभिन्न प्रकार एस्पेक्ट हमें कहूचे इमिटेशन ऑब्जर्वेशन विभिन्न माध्यम रे हमर शिक्षण ता हिथाय किंतु इट टेक्स प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लर्निंग टा केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रे हिथाय कि पिले नहीं लर्निंग टा फॉर्मली हिथाय इनफॉर्मली हिथाय लर्निंग टा नॉन फॉर्मली हिथाय मध्य तमे केवल स्कूल कॉलेज रे सिखुछ कि स्कूल कॉलेज को छाड़ दिले सांग साथी बापा माँ खेल कूद विभिन्न प्रकार टेलीविजन रेडियो मोबाइल फोन सेठू भी सिखुछ इनफॉर्मल हेगला जेकोसी स्थान रे जेकोसी व्यक्ति रे हम शिक्षा ग्रहण करूचे ता सहित विभिन्न प्रकार इग्नो हेगला डीडीसी हेगला एडल्ट एजुकेशन केयर हेगला नाइट एजुकेशन सिस्टम हेगला सेठी मध्ये शिक्षा ग्रहण करूचे तो फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल तेणु करी ऑप्शन ए एटा को हमें केवल गोटे लर्निंग रो हमें कोन करबा कैरेक्टरिस्टिक्स भाबे कंसीडर करि परिबा नाही केवल फॉर्मल होची ता कहि परिबा नै फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल रे मध्ये हेइथाय क्वेश्चन नंबर 15 पिले से एनेक्डोटल रिकॉर्ड रो पचला इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट काहे के हमें को यूज करथाय रेकॉर्डिंग मार्क्स पिलांकर मार्क्स को रेकॉर्ड करबा कारण एटा तुम माने कहउतलो ये होची कोन ना क्वालिटेटिव सो क्वालिटेटिव रे हमें केवल मार्क कथा कहबा नै मार्क कथा आसले कोन हो क्वांटिटेटिव हिजबो ता कहउतलो ऑब्जर्वेशन टूल ये होची ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर पिला मानकर स्पेसिफिक जो इंसिडेंट रहिला और इवेंट्स रहिला ताको ऑब्जर्व करिबा ताको रिकॉर्ड करिबा और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करिबा और हमें कहि परिबा रिटन लाइक ए शॉर्ट स्टोरी क्वेश्चन नंबर 16 प्ले when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called जेतेबेले तार previous learning
नुआ जगह रे गोटे परफॉर्मेंस रे कोनोसी प्रकार डिफरेंस क्रिएट करूनी ताकू हेल्प करूनी कि प्रॉब्लम क्रिएट करूनी ताले ताकू हमें कोन कहिबा ना ताकू हमें कहिबा ताकू हमें कहिबा जीरो ट्रांसफर बा शून्य संक्रमण जेतेबेले पूर्वरु आमे किछि शिखिचे बा जानिछे जदि हम गोटे नुआ सिचुएशन रे सेटा हेल्प करूनी कि प्रॉब्लम क्रिएट करू जेमति कि मु कहबी मु एमएल साहित्य पढिछि साहित्य पढिबा आ बाइक चलेबा भितर कोनोसी संबंध अछि कि मु धर जे कोनोसी प्रकार गोटे कार्यटे पढिछि शिखिछि सेटा मत नुआ सिचुएशन रे कोनोसी काम रे लागुनी बा कोनोसी समस्या सृष्टि करूनी ताको जीरो ट्रांसफर पॉजिटिव ट्रांसफर कोन लर्निंग इन वन सिचुएशन व्हेनेवर हेल्पफुल इन लर्निंग सिमिलर सिचुएशन आमे कहि परिबा कि गोटे जगह में शिखिछि आ गोटे जगह मते सेटा शिखिबारे हेल्पफुल होउछि बाइक चलेबाटा मते कार चलेबारे हेल्पफुल होउछि त जेटा पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर कोन लर्निंग इन वन सिचुएशन व्हेन क्रिएट्स हिंड्रेंस इन लर्निंग सिमिलर सिचुएशंस जतले गोटे जगह कि शिखिछि आ गोटे जगह मते समस्या होउछि आ कि शिखिबारे मोर ओडिया शिखिबाटा बंगला शिखिबा जदि प्रॉब्लम सृष्टि करूछि ताले त कहबा नेगेटिव ट्रांसफर एटा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो मानू बारंबार कहिछि मन रखिबो तीनटा मेजर एस्पेक्ट पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर आउटला जीरो ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर 17 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट को जोड़ीटा हमर आधरु ठीक नुहे पिले कोलरंकर कोन इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग थंडाइंकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रयत्न प्रमाद तत्व इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी हला कोन अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व देन पावलमकर कोन ना क्लासिकल कंडीशनिंग ये तीनटा ठीक अछि किंतु वाटसन कर ऑपरेंट कंडीशनिंग नुहे पिले ऑपरेंट कंडीशनिंग कहार ना बीएफ स्किनर कर वाटसन कर लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट से लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट करथिले आउ तांकु भी कुहा जाय हमर कोन ना फादर ऑफ बिहेवियरिज्म तांकु कुहा जाय फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आ आंकर एक्सपेरिमेंट थला कहा परे ना लिटिल एल्बर्ट उपरे क्वेश्चन नंबर 18 प्ले क्रिटिकल पेडागोजी ऑफ पाउलो फेयर जो क्रिटिकल पेडागोजी रहिला एमसेट तार कोन बिले लक्ष्य रही थाए बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रेशनलाइज करिबा ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन रो विरोध रे थिले टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमकु बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन रु दूर को जिबार अछि हमकु प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन हमकु प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को आपणेबार अछि बा हमकु डायलॉग ओरिएंटेड एजुकेशन को आपणेबार अछि जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को से क्रिटिसाइज करथिले कांक्रीट से करी कहले ना कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इज लाइक ए बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जेमति तुम बैंक रे जाउछो पैसा को डिपॉजिट कर दे पळि आउछो किछि इंटरेक्शन नाही किछि डायलॉग नाही किछि क्रिटिकल कंसंट्रेशन नाही से भली भाबरे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भी सेमति टीचर आछंती ज्ञान को तम मुंड रे कोन करछंती डिपॉजिट कर दे कि पळौछंती सेठी इंटरेक्शन होनी डायलॉग होनी सेटा से क्रिटिसाइज करथिले तो सेथुर हमकु दूर को जिबार अछि बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन रु आपणे बार कोन अछि ना प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन आ डायलॉग ओरिएंटेड एजुकेशन को क्वेश्चन नंबर 19 पिले रिपीटेशन स्ट्रेंथेन्स द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स व्हाट लॉ ऑफ लर्निंग इज इट्स बेस्ड अपॉन पिले जदि आमे रिपीटेशन करिबा बारंबार गोटे कार्य को अभ्यास करिबा ता द्वारा स्टिमुलस रेस्पॉन्स रो जो बॉन्ड रहिला जो कनेक्शन रहिला जो एसोसिएशन रहिला सेटा आहुरी स्ट्रांग हबो सेट को लॉ सहित जड़ित कोर पिले ना सर लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज आमे कहूचे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा ताकू ओडिया रे आमे कहूचे अभ्यास नियम जी बारंबार गोटे कार्य जदि आमे अभ्यास करिबा रिपीटेशन करिबा ताहाले कोन हबो से कार्यटा हमर आहुरी बेटर हबो बहुत भलो हबो से लॉ ऑफ प्रैक्टिस को से दी बाहर व्यक्त करथले कोन ना लॉ ऑफ यूज आ गोटेला लॉ ऑफ डिसयूज लॉ ऑफ यूज है बारंबार अभ्यास कले रिपीटेशन कले सेटा होरी स्ट्रांग हबो बेटर हबो आ जदि हम डिसयूज व्यवहार न करिबा ताहले कोन हबो बारंबार रिपीटेशन न करिया प्रैक्टिस न करिबा ताहले सेटा दुर्बल हेका जिवो सो लॉ ऑफ लर्निंग रो एटा तुमकर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग बाय
ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହୁ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି? କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜିରେ କିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହବା କଥା ନା ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହବା କଥା, ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଡାଇଲଗ୍ କରିବା କଥା, ସିଏ କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର, ସିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସିରିଜରେ ବା ଏଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତମମାନେ 20ରୁ କେତେ ସ୍କୋର କଲ ତମମାନେ ପିଲେ ଜଣାଅ। ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱିକଲି ପିଲେ କଭର ଅପ୍ କରିବା, କାରଣ 5ଟା ଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କର ସାରିବା ପାଇଁ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 104 ପିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତମମାନେ ପଚାରି ପାରିବ ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ। ତା ସହିତ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ 20ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖେଇକି। Question number 1 ପିଲେ, a creative learner one who is good at, ଆମେ କାହାକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଲର୍ନର ବୋଲି କହିବା? ଜଣେ ଯଦି କ୍ରିଏଟିଭ ଲର୍ନର ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ଥିବ ବା କେଉଁଥିରେ ଗୁଡ୍ ଥିବ ଆମେ କହିପାରିବା? କ୍ରିଏଟିଭ ଲର୍ନର ମାନେ କଣ ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ୟୁନିକ୍, ଯେ ଯାହାର ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛେ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡିଆ, ଯେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆଇଡିଆ ଆମେ କହୁଛେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନୋଭେଟିଭ, ସମଥିଙ୍ଗ ନୋବେଲ ଆଇଡିଆ ଆମେ କହୁଛେ। ଯୋଉମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଲର୍ନର ସେମାନେ ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ପିଲେ ଗୁଡ୍ ଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ ପିଲେ? ଥିଙ୍କିଂ ର ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ସେଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁଛେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଭର୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ତ ଏଗୁଡା ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଅ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଥିଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ସେ ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପିଲେ କଣ ନା, ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା କଣ କଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି ତାହା ଆଧାରରେ ସେ କଣ କଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ଥିବେ ଦେଖିବ ସେ ଏମିତି ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେ ଠାରୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେ ଆମେ କହୁଛେ, ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ସମଥିଙ୍ଗ ନୋବେଲ, ସମଥିଙ୍ଗ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ତମେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବ କେମିତି? ଲକ୍ ଅଛି ନା, ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାର୍ ଚାବି ପଡୁଛି, ଚାବିଟା ଖୋଜ, କୋଉଠି ଚାବିଟା ଖୋଲିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପିଲାଟା ନା ସାର୍ ଝରକା ବାଟେ ଆମେ ବାହାରି ପଳେଇବା, ସାର୍ ସ୍କାଲେଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଡୱାର୍ଡ ଡି ବୋନଙ୍କର ଆଇଡିଆ, ଯିଏ କି ଭର୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କୁ, ଯୋଉ ଭର୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ସିକ୍ୱେନ୍ସାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାଟର୍ନ କୁ ଫଲୋ କରି ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଟା ଅଛି ତାଠୁ ଭିନ୍ନରେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଥିଙ୍କିଂ ଟା ଇନୋଭେଟିଭ ହବା ଦରକାର, ନ୍ୟୁ ହବା ଦରକାର, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେ ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ତ ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କଣ? ଆମେ କହୁଛେ ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅର ଜେନେରେଟିଂ ଆଇଡିଆ, generating ideas in an indirect, non-traditional and creative way। ଆମେ କଣ କଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛେ, ସେଟା ପୁରା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ, ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟିଭ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି କଣ ନା, ଭର୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ତାର ବିପରୀତ ସିଏ କହୁଛି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ଜେନେରେଟିଂ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆସ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ଜେନେରେଟିଂ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ କଥା କହୁଛେ, ଥିଙ୍କିଂ କ୍ରିଏଟିଭଲି ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ଅନକନଭେନସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା କହୁଛେ। ଭର୍ଟିକାଲ ରେ କଣ କହିବ ନା, ଥିଙ୍କିଂ ଲଜିକାଲି, step by step, by following existing pattern। ଯାହା ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାଟର୍ନ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦବା। ଏଠି ନ୍ୟୁନେସ କଥା କିଛି କହୁନି। ଆମେ ଯେମିତି କି ଲାଟରାଲ ରେ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ରୁଲ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉ ରୁଲ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଆମେ ନ୍ୟୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭସ ଦବା। ଇଏ କହୁଛି ନା, ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକିଂ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଚିଂ ନ୍ୟୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭସ। କୋଉଠି ଲାଟରାଲ ମାନେ breaking rules and reaching to new perspectives।
ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ରୁଲ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଆମେ ୱିଦିନ୍ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ପାଟର୍ନ ରହିଲା ତା ଭିତରେ କାମ କରିବା। ତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ୱାର୍କ ୱିଦିନ୍ existing or established rules and structures। ठीक है भाई सर lateral thinking है कौन ना सर generating new idea innovative idea ଆମେ କହିପାରିବା indirect way or non traditional way of generating newness or new idea ଯୋଉଥିରେ ଆମେ traditional ଯୋଉ rules regulations ହେଲା ତାଠୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ଆମେ ନୂଆ perspectives କୁ generate କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ vertical thinking କଣ ଜାଣିଲେ ନା ସାର୍ ଆମେ logically step by step ରେ existing pattern ଯାହା ଅଛି ତାକୁ follow କରି traditional way ରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ linear way ରେ sequence way ରେ step by step ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟେ ଦଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା establish ଆମର rules regulation ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏଟା ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ନା lateral thinking ଆଉ vertical thinking ଏ ଦିଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। lateral thinking ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି କି lateral thinking ହଉଛି କଣ ନା solving problem or generating ideas indirect creative approach ମାଧ୍ୟମରେ indirect creative plus non traditional। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ଆଉ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା କିଏ ପିଲେ କଏନ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଡୱାର୍ଡ ଡି ବୋନୋ। ହଁ ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏଇଟା ବି ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କଣ ନା ସାର୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବା ଆମେ ରେସନାଲ ସହିତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବା ଆମେ ତାର ପଜିଟିଭ ସାଇଡ ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ଦେଖିବା। ତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି ଆବିଲିଟି ଟୁ ଥିଙ୍କ ରେସନାଲି ନା କହିପାରିବ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟରଲି ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତର୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଏବୁଲ ଟୁ ମେକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ରିଜନ ସହିତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରୁଛେ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରୁଛେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିପାରୁଛେ ଇଭାଲୁଏସନ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏବୁଲ ଟୁ ମେକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏବୁଲ ଟୁ ମେକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା କନଭରଜେଣ୍ଟ କନଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ ନା ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। କଣ କନଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ତମାନେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ୱାନ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଦବାର ଅଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ରେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ତ କନଭରଜେଣ୍ଟ ତ ମାନେ ମନେ ରଖ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ୱାନ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ providing one well defined solution କିନ୍ତୁ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ରେ ପିଲେ କଣ ନା providing multiple solution to a problem providing multiple solution। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ କନଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଟା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ଆଉ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଟା ତମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଠିକ ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ କି ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଲାଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କନଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। क्वेश्चन नंबर 2 प्ले सेल्फ कॉन्सेप्ट मींस सेल्फ कॉन्सेप्ट कहले हम कोन बुझे प्ले सेल्फ कॉन्सेप्ट प्ले व्हाट वन जजेस ऑफ हिज अचीवमेंट व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ जने निज विषय रे कोन भाबुची हाउ यू वैल्यू योरसेल्फ हाउ यू वर्थ योरसेल्फ
what is your ideal self or what you want to be in your life ये सब तुमर सेल्फ कॉन्सेप्ट भितर आसीबो कि मु वर्तमान कोन मु निजु केमिति मूल्य दउची मु जीवन रे कोन होबा को चाहूची ये सब दिन सेल्फ कॉन्सेप्ट भितर तुमर आसीबो तो ऑप्शन बी तुमर करेक्ट आंसर सेल्फ कॉन्सेप्ट मध्ये हमें तीन भाग रे बा तीनटा मेजर कैटेगरी करूचे एज पर द व्यू ऑफ कार्ल रोजर्स रोजर्स अनुसार कोन कोन ना गोटे हला तुमनकर सेल्फ इमेज सेल्फ वर्थ आउला आइडियल इमेज आउ सेल्फ इमेज हला हाउ यू सी योरसेल्फ वर्तमान समय आमे निजको के भली भाबरे देखुचे बा एक्जिस्टिंग आमे कहूचे हमर कोन एबे स्टेटस को एना कोन अछि आ सेल्फ वर्थ हला हाउ यू वैल्यू योरसेल्फ आमे वर्तमान निजको केमिति मूल्य दोचे कि मु भाबुची हम भलो परफॉर्मेंस करूची हम भलो पढुची हम भलो प्लान पढौची कि आमे वर्तमान निजको केमिति मूल्य दोचे निजर अर्थ कोन हेबे सेल्फ अर्थ कोन आइडियल इमेज हला आमे कोन जीवन रे होबा को चाहूचे व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ तुमे कहा भली होबा को चाहूचो केउ परि होबा को चाहूचो हेला तुमकर आइडियल इमेज जेतेबेले सेल्फ इमेज आ आइडियल इमेज कोन होच पिले जेतेबेले सेल्फ इमेज आ आइडियल इमेज ता मर्ज होबो बा ओवरलैप करिवो सेतेबेले हबो कांग्रुएंस जेतेबेले कांग्रुएंस हबो सेतेबेले कोन हबो ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हबो ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 3 पिले at what stage of development the child is egocentric को स्टेज रे पिलाटा इगोसेंट्रिक थाए पिले आंसर करे पिले सर प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स भितरे पिला इगोसेंट्रिक थाए इगोसेंट्रिक माने कोन ना सर inability to see others perspectives अन्य मानकर पर्सपेक्टिव्स बा व्यू पॉइंट को से देखि पारे ना इनएबिलिटी ता भीतर जो थाए बा कहूचे एटा को इगोसेंट्रिक को शॉर्टकट रे मन रखिबो सेल्फ सेंटर्ड जेतोले से सेल्फ सेंटर्ड हे जिवो जेतोले से अन्य मानकर व्यू अन्य मानकर ओपिनियन को देखि परिबोनी से सब दिन चिंता करिवो फ्रॉम हिज ओन नीड्स फ्रॉम हिज ओन डिजायर्स फ्रॉम हिज ओन ओपिनियंस से अन्य मानकर व्यू ओपिनियंस को केयर करिवो नाही अब एटा एलिमिनेशन कोडी हेते ना कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज रे एलिमिनेशन हे जाय कार ना इगोसेंट्रिज्म बा तार इगोसेंट्रिक थिंकिंग रो क्वेश्चन नंबर 4 पिले क्वेश्चन नंबर 4 पिले डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विथ डिसकैलकुलिया कहा सहित एसोसिएटेड ये लर्निंग डिसेबिलिटी रो पिले क्वेश्चन डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन रिलेटेड कैलकुलेशन माने कोन मैथमेटिकल बा अरिथमेटिकल स्किल तो एटा हला तुमन डिसकैलकुलिया हला कोन ना अरिथमेटिकल जेतबेले स्किल रे डिफिकल्टी आसुची मैथमेटिकल स्किल रे डिफिकल्टी आसुची कैलकुलेशन रे डिफिकल्टी आसुची तको में डिसकैलकुलिया कहिबा रीडिंग हेले डिसलेक्सिया राइटिंग हेले डिसग्राफिया स्पीकिंग हेले कोन को जबिले ना अफासिया बा डिस्फासिया टिके बिले देखि रखिबा टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी रे कोन कोन अछि ना सर एई एतिके को तुमको भलो भाबरे मन रखिबार अछि कोन कोन बोला डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया माने रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी हमें कहूचे डिसकैलकुलिया मैथ रिलेटेड बा कैलकुलेशन रिलेटेड अरिथमेटिक स्किल रिलेटेड डिसेबिलिटी डिसग्राफिया ग्राफ लेखा लेखी राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी डिस्प्रैक्सिया फाइन मोटर स्किल रिलेटेड डिसेबिलिटी बा ओडो हम डीसीडी बोली बोली कहि थाउ त माने एक क्वेश्चन भी करे छै डीसीडी कोन बिले ना डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जोटे कि आमे कहूचे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जोटा हम डीसीडी बोली कहि थाउ जोटा कि पर्सन रो आमे कहि परिबा फिजिकल मूवमेंट्स रे को अफेक्ट्स करे फाइन मोटर स्किल जिन तार राइटिंग हे गला ड्रेस रे बॉटम दबा हे गला शूलेस बांधिबा हे गला जो तार स्मॉल मसल रो इन्वॉल्वमेंट होय से रिलेटेड तार प्रॉब्लम मध्ये देखा जाय आउडला डिस्फासिया बा अफासिया डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज जोडो आमे कहूची जदी कोनोसी कारणवशत तार आमे कहि परिबा ब्रेन स्ट्रोक होउची ब्रेन इंजुरी होउची सेही कारणवशत से कोन तार कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जिवो ई जो ए प्रकार लैंग्वेज डिसऑर्डर को आमे कहूचे डिस्फासिया बा अफासिया कहूचे तो आरो जोडा अछि टिके टिके तमे देखि परियो पिले कोन कोन ना ऑडियोटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पिले ऑटिज्म गोटे प्रकार डिसऑर्डर सेटा मध्य तो माने जानि रखि था बेले बेले तमान को मध्य सेथरु क्वेश्चन आसी पारे ऑटिज्म टा कोन पिले ना सर गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये कोन करे ना आ द्वारा गोटे पर्सन भलो भाबरे गोटे जिंस को परसीव करि परना इंटरैक्शन भलो भाबरे करि परना पर्टिकुलरली चैलेंजेस को क्षेत्र देखा जाए ना इंटरैक्शन कम्युनिकेशन रिपीटेड बिहेवियर भी देखा जाए ठीक है बिले
which of the following is not a stage of cognitive development according to Jean Piaget? Jean Piaget को मत अनुसार आधुर कोटा गोटे cognitive development रो stage भीतर आसीबो नाही। आंसर करे पिले तो सर आपण तो कहिथिले सेंसरी मोटर तो एटा हे गला प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ये कोन आसिलानी परसेप्चुअल थॉट ये कोन आसिलानी इंट्यूटिव थॉट एगुडा तो हम केबे देखिनु सेई पियाजेट तो माने खेलेबो क्लास देखिबो स्टेजेस पढेला बेले भी मु तो माने कहिची कि प्री ऑपरेशनल जो स्टेज रहिला सेई प्री ऑपरेशनल स्टेज भितरे आउ दीटा सब स्टेज अछि गोटेला प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड बा प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट पीरियड जोटा कि कहते 2 to 4 इयर्स आउटला इंट्यूटिव थॉट पीरियड जोटा हला 4 to 7 इयर्स तो एई दिटा तो मानकर से स्टेज भीतर भी आसीबो किंतु द पीरियड ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वेशन एटा गोटे स्टेज भीतर आसीबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले क्वेश्चन नंबर 6 एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल मोटिव्स इज आदो कोडा गोटे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स पिले एटा बहुत इजी तुम मानकर ऑप्शन ए फूड तुम जानिचो मास्लोंगर हायरार्की ऑफ नीड्स रे ब्रॉड कैटेगरी तीनटा गोटेला बेसिक नीड्स गोटेला साइकोलॉजिकल नीड्स आ गोटेला सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स बेसिक नीड्स रे नीड्स गोटेला फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गोटेला सेफ्टी नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स रे कोन अछि सेटा टिके देखि रखो पिले सेफ्टी नीड्स रे कोन अछि सेपटे लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स रे सेल्फ एस्टीम नीड्स रे आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रे आ बेसिक नीड्स को यदि हम दुईटा कैटेगरी करिया गोटेला सेल्फ सेफ्टी नीड्स आ गोटेला फिजियोलॉजिकल नीड्स सेमति साइकोलॉजिकल नीड्स को यदि हम गोटेला सेल्फ एस्टीम नीड्स आ गोटेला लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आ सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स ला तुमरो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पिले द थ्योरी ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ नीड्स ranging from physiological needs to self actualization needs was given by पिले hierarchical order of needs के दैछंदी सर अब्राहम मास्लो ऑप्शन सी तुमंकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पिले one basic factor influencing learning is आधुरु लर्निंग को इन्फ्लुएंस करूथिबा गोटे फैक्टर कोन पिले बा गोटे मौलिक आमे कहि परिबा कारण कोन सर लर्निंग तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रभावित करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रभावित करता है लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स प्रभावित करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रभावित करता है तो आ भीतर यदि कहबा ना रेडीनेस होची गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर यदि पिला रेडी नथियो हम पढौचे व्हेन द कंडक्शन यूनिट इज रेडी यदि हम सही समय ताको पढौचे ताहले लर्निंग टा इफेक्टिव हबो सैटिस्फाइंग हबो यदि पिला रेडी नाही ताको हम पढौचे ताहले लर्निंग टा अनोइंग हबो सैटिस्फाइंग हबो नाही जोटा कि लॉ ऑफ रेडीनेस तुम मानकर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बाय थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सहित जड़ित। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले which of the following is a step of a test construction आदर कोटा प्ले गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो स्टेप टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो कोन सब स्टेप्स अछि ना सर इंपोर्टेंट स्टेप्स भीतर हमें कहूचे प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आ गोटेला इवैल्यूएशन तो ये चारिटा स्टेप अछि प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन एडी हमर देखो प्लानिंग ये होची गोटे स्टेप भीतर आसीबो रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स ये से टेस्ट कंस्ट्रक्शन भीतर में भी आमे कोइ परिबा जतो बळे टेस्ट कंस्ट्रक्शन करूचे आसी परिबो किंतु जदि आमे मेजर चारिटा कैटेगरी देखुचे स्टेप रो ये स्टेप भीतर आसुची जेमति कि आमे कहिबा जो इवैल्यूएशन करूचे से इवैल्यूएशन भीतर मध्ये आमे कोन करथाउ ना रिलायबिलिटी चेक करू वैलिडिटी चेक करू ठीक है प्ले तो तुम चारिटा स्टेप्स मन रखता प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आउ इवैल्यूएशन तो एई क्वेश्चन अनुसार तुमकर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 प्ले द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस ऑफ अ टीचर इज मोस्ट इन कोथरे प्ले अधिक बायसनेस थाए बायसनेस माने काहाकू आमे कहि परिबा मार्क रे बहुत डिफरेंशिएशन देखा जिवो जेमति जणे इवैल्यूएटर जण को अधिक मार्क दे परंती जण को कम मार्क दे परंती इवैल्यूएटर से क्वेश्चन को देखि कि से कहंदी एई क्वेश्चन रे मु अधिक मार्क देबी एई क्वेश्चन रे कम मार्क देखि से पिल्ला को देखि मु इथरे अधिक मार्क देबी सेतरे कम मार्क देबी तो एई प्रकार जो बायसनेस आसे को प्रकार क्वेश्चन रे अधिक आस्ताय ना सर जोटी सब्जेक्टिविटी अधिक थिबो ऑब्जेक्टिविटी रहले पदार्थ हु इज द फादर ऑफ नेशन तमे कहबो महात्मा गांधी सेटा बायसनेस कोन रहइबो किंतु जो सब्जेक्टिव व्हाई ओरिएंटेड क्वेश्चन जदि थिबो ताहले सेटी बायसनेस अधिक आसी पारि थाए तो एसे टाइप क्वेश्चन बा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे अधिक बायसनेस देखा जाय। क्वेश्चन नंबर 11 पिले इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड एट एंड ऑफ ए कोर्स गोटे कोर्स रो एंड जदि इवैल्यूएशन होउची ताल तक हमें कोन कहिबा
एंड रे हेले ताको हमें समेटिव बोली कहिबा मन रखिता पांचटा पॉइंट चारि पांचटा पॉइंट कहूची कोन ना समेटिव इवैल्यूएशन टा केतोले करा जाय ना सर एंड रे करा जाय समेटिव इवैल्यूएशन टा काहेकि करा जाय ना पिलांकू ग्रेड प्रदान करिवा पाई पिलांकू सर्टिफाई करिवा पाई हमरो टीचिंग लर्निंग रो जहा ऑब्जेक्टिव्स थिला सेटा इफेक्टिव हैला कि नाही इफेक्टिवनेस को चेक करिवा पाई जजमेंट प्रोवाइड करिवा पाई फर्दर डिसीजन नबा पाई मास्टरी चेक करिवा पाई तो एई केतरा पॉइंट कहली तो माने समेटिव रे भलो से मन एंड रे होची ग्रेड दबा सर्टिफाई करिवा इफेक्टिवनेस चेक करिवा जजमेंट प्रोवाइड करिवा वैल्यू जज करिवा डिसीजन नबा मास्टरी चेक करिवा ये सब तो मानकर समेटिव इवैल्यूएशन रो काम क्वेश्चन नंबर 12 पिले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पिले केबे केबे एटा 2005 रे आसला बा एटा किए प्रदान करथले बा काहा द्वारा एटा प्रस्तुत करा जायतला कोरि पिले एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 रे जहार स्थापना हेतिला तो माने जानिथिबो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को के चेयर करथिले गोटे नेशनल स्टीयरिंग कमिटी बसिथिला नेशनल स्टीयरिंग कमिटी रे प्रोफेसर यशपाल ताकू चेयर करूथिले जे प्रोफेसर यशपाल जे की लर्निंग विदाउट बर्डन कमिशन सहित एसोसिएटेड जोथरे तुमनकर गोटे स्टीयरिंग कमिटी 21 टा नेशनल फोकस ग्रुप रो थ्रू रे तुमनकर एनसीएफ 2005 रो स्थापना हला आगुरु केबे केबे सब एनसीएफ आछि से 1975 रे आछि 1988 रे आछि 2000 रे आछि आउ 2005 एवं रिसेंट मध्ये एबे गोटे 2023 रे मध्ये आछि जोटा कि 23 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा हमरो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आधार रे एटा आछि क्वेश्चन 13 इवैल्यूएशन इज पहले इवैल्यूएशन कोन सिमिलर विथ मेजरमेंट मेजरमेंट से तो ये सिमिलर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट कारण आमे जते बेले मु तमनु कहि छी जते बेले आमे प्रथमे टेस्ट करिबा पिला को 10टा क्वेश्चन देले 10टा क्वेश्चन रो पिला आंसर दउचंती से 10टा क्वेश्चन को आनी कि आमे कोन करिबा तांको मेजर करिबा टेस्ट कला परे तांको मेजरमेंट करिबा मेजरमेंट रे आमे कोन करिथाउ कि राम पाइला 20 मार्क रु 10 मार्क तो एटी न्यूमेरिकल आमे डिस्क्राइब कलु बा क्वांटिफाई कलु मेजरमेंट कला परे पुणी आमे कोन करू तापर गोटे स्टेप हला असेसमेंट असेसमेंट रे आमे कोन करथाउ ना असेसमेंट रे आमे देखिथाउ राम 20 रु काहे कि 10 रखिला काहे कि 20 रु 20 रखिलानी कोडी तार प्रॉब्लम रहिला तो मॉनिटर करिबा प्रोग्रेस देखिबा तो सेटा कोथरे असेसमेंट रे तापरे लास्ट कोन लास्ट हला आमे कहूचे इवैल्यूएशन बा गोटे लास्ट कहबानी आमे गोटे फाइनल कहिबा इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन आमे कोन करथाउ ना वैल्यू जजमेंट करथाउ तो सबठु ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव कोन इवैल्यूएशन ता भीतर के आछी ता भीतर असेसमेंट मेजरमेंट टेस्ट आछुची असेसमेंट भीतर मेजरमेंट टेस्ट आस पर मेजरमेंट भीतर टेस्ट आस पर सबठु टेस्ट हला आरंभ बा बेसिक हमें कहूचे तो सेही दृष्टि आमे कहि परिबा कि इवैल्यूएशन होची मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट कॉम्प्रिहेंसिव देन असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव देन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 14 पिले an example of a commonly employed qualitative assessment tool आधुरु कोउटा गोटे क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल भीतर आसियो पिले गुणात्मक आमे कहूचे गोटे असेसमेंट टूल क्वालिटेटिव देखो कोउटा बेसी व्हाई ओरिएंटेड कोउटी बेसी ओपन एंडेड क्वेश्चन रो कथा आसुची जो आमे किछि पिला क्लास रे पढुचन ताको आमे ऑब्जर्व करिबा तो सेठी आमे क्वांटिफायर क्वेश्चन आसुनी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन आसुनी तो आमे देखिबा ऑब्जर्वेशन करिबा सो ऑब्जर्वेशन होची निश्चित भाबरे तमरो गोटे कोन ना गोटे क्वालिटेटिव टूल कहबा पे कि याकू टेक्निक कहबा मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो ठीक है पिले पर्यवेक्षण गोटे कौशल क्वेश्चन नंबर 15 पिले days and nights are caused by dash motions of the earth what kind of question is this एटा को प्रकार क्वेश्चन पिले तो एटी तुमानकर डैश रहिछि पिले डैश रहिले हम त कोन कहउथिले सर यदि डैश रहितिबो ताको हमें कहिबा कोन ना कंप्लीशन टाइप बा फिल इन द ब्लैंक टाइप
ठीक है जो मेजर कैटेगरी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो मु एबे ही तमनु कहि के आसिली कि जदि आमे कैटेगरी करिबा कंप्लीशन टाइप बा सप्लाई टाइप बा तो कमे कहूचे कंप्लीशन टाइप बा सप्लाई टाइप ता अंडर रे दीटा आसुची कोन कोन ना गोटेला तो मानकर शॉर्ट आंसर बा तो कमे आउ कोन कहूचे तो कमे रिकॉल टाइप बोली कहूचे आ गोटे पिले कोन आसुची ना गोटे तो मानकर आसुची कंप्लीशन बा फिल इन द ब्लैंक्स ताको हमें कहूचे फिल इन द ब्लैंक आ तो माने कहूचे रिकॉग्निशन टाइप बा जोटा को तो माने कहूतलो सिलेक्शन टाइप ता भितर आसीबो तो मानकर ए तीनटा रिकॉग्निशन टाइप बा सिलेक्शन टाइप भितर ए तीनटा को आसीबो कोउटा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स आउ मैचिंग टाइप एटा का भितर आसला एटा आसला रिकॉग्निशन भितर रिकॉग्निशन बा सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन नंबर 16 प्ले a test is said to be valid if it measure गोटे टेस्ट को केतबेले वैलिड कहबा जेतबेले तार जहा उद्देश्य अछि लक्ष्य अछि से जा चाहूची सेही जिंस को मेजर करि पारुथो ताहाल त कोमटे वैलिड टेस्ट बोली कहबा व्हाट इट ऑट टू मेजर आरो दी तीनटा क्वेश्चन एमति पछारे सेडी व्हाट इट ऑट टू मेजर कहिला व्हाट इट सपोज टू मेजर भी पछाड़ दबो व्हाट इट पर्पज टू मेजर तार जहाँ पर्पज अच्छी से जहाँ सपोज कर से जिन से मेजर कर पारुछि ताल तक हम गोटे वैलिड टेस्ट बोली कहिबा तो वैलिडिटी कोन रिलायबिलिटी कोन एगुडा मु तुमन बुझौ नाही तुम मानकर क्लास देखिबो जो 14टा वीडियो अछि सेतर मु तुमन भलो भाबरे बुझेछि वैलिडिटी कोन तार टाइप्स कोन रिलायबिलिटी भितर कोन संबंध अछि क्वेश्चन नंबर 17 प्ले which of the following is not a guiding principle of NCF 2005 आधुरु कोउटा गोटे जातीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल प्ले नुहे नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्क कारण एटा हला कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल गोटे इंपोर्टेंट आमे कहूचे गाइडिंग प्रिंसिपल जोथरे रियल लाइफ सिचुएशन सहित लर्निंग को आमे रिलेट करिबा ensuring that learning shift from rote to method हाँ आमे shifting learning away from rote to method पिला को अंडरस्टैंडिंग ऊपर बेसी गुरुत्व करिबा क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर गुरुत्व करिबा नुहे कि रोट मेमोराइजेशन ऊपर then making examination more flexible interacting the with the classroom life examination को फ्लेक्सिबल करिबा इंटरैक्टिंग होबे एटा इंटीग्रेटिंग होबा कथा हमें कोन करिबा कि एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल करिबा एवं क्लासरूम लाइफ से ट्राई करिबा ताको इंटीग्रेट करिबा पई स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन रेगुलरली ना तो मानकर गाइडिंग प्रिंसिपल्स भितर आसीबो ना आउ कोन गाइडिंग प्रिंसिपल्स भितर आसी परियो पिले जेमति कि हमें कहि परिबा ओवरऑल डेवलपमेंट ऊपर गुरुत्व करिबा करिकुलम एमिति बनेबा जेमति पिलार ओवरऑल डेवलपमेंट हेई परिबो आउ गोटे भी कहउतला कि ओवरराइडिंग आइडेंटिटी हमें नर्चर करिया पिलांग भितरे जेमति कि कंट्री पई तांग भितर गोटे केयरिंग कंसर्न डेवलप हेई परिबो तो पांचटा गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो माने मन रखिबो एनसीएफ 2005 रो क्वेश्चन नंबर 18 पिले process and task of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principles आमे कहूचे मेजरमेंट आ इवैल्यूएशन रो प्रोसेस आ टास्क को प्रिंसिपल को आधार करके हमें प्रिपरेशन करता बा को प्रिंसिपल द्वारा से गवर्न होता है आंसर दे बिले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ हमें कंटिन्यूटी के देखिबा कॉम्प्रिहेंसिवनेस देखिबा सिलेक्टिंग appropriate tools and measurement tools of measurement evaluation तापर भी गुरुत्व करबा ये सब जाक आसीयो कोन ना तुम मानकर प्रिंसिपल्स भितरे the main objective of a diagnostic evaluation asle mane SWOT मन पके दो SWOT कोन strength weaknesses opportunity और threats बा इश्यू चैलेंजेस कथा मन रख दो प्रॉब्लम्स कथा मन रखि दबो तो फाइंड आउट द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम आसी गला ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर सिंग रिमेडियल एक्शंस तो एटा दिन छडी आसी गला हमरो रिलेटेड टर्म तो आगु बुझबार आवश्यकता नाही हम देखिबा पिलांकर कोन लर्निंग रो प्रॉब्लम अछि तार कारण कोन एबं ट्राई करबा तार सॉल्यूशन करिया पय रिमेडियल क्लासेस माध्यम रे रिमेडियल एक्शंस माध्यम रे क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज
In the constructivist approach, assessment is constructivist approach ଅନୁସାରେ assessment ଟା କୋଉ ଭଳି ହବା ଉଚିତ ପିଲେ ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ ରେଗୁଲାର କରୁଥିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହିଁ କରାଇବା କଥା ନୁହଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ର ହଉଛି କଣ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା ଫର୍ମେଟିଭ ଇନ ନେଚର ଫର୍ମେଟିଭ କାରଣ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ରେ ପଢିଥିଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସୁଡ ବି ଫର୍ମେଟିଭ ରାଦର ଦ୍ୟାନ ସमेटिव ସमेटिव କୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା ଅନଗୋଇଂ ହବା ଦରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା ରେଗୁଲାର ହବା ଦରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲ ହବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଫାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ ହେବା ଦରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲାଇଜ ହେବା ଦରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା ଫିଡବ୍ୟାକ କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦରକାର ଫିଡବ୍ୟାକ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆମେ କହୁଛେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ସ ଟୁଲ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଦରକାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଅର କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଦରକାର ठीक है मन रखियो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच अनुसार ऑनगोइंग असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट मल्टीपल असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड टूल्स रो व्यवहार माध्यम रे असेसमेंट को गुरुत्व करा जाए तो एई तुम मानकर जो आमे कले पिले मॉक टेस्ट ए मॉक टेस्ट तुम माने 20 रु केते स्कोर कलो निश्चित भाव मेंशन करिवो जदि तुमको किछि डाउट रहितो ताहे तुम माने मध्य मेंशन करि परिवो पिले आमे टिके स्पीड अप करूचे कारण पांचटा मॉक टेस्ट 100टा क्वेश्चन वीडियो लेंदी न हो तुम माने भी स्पीड रे पढिबार स्पीड रे बुझिबार अभ्यास करि दियो ठीक है पिले जेबा नेक्स्ट प्ले मॉक टेस्ट नंबर 105 मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 105 प्ले जोतरे तुमानकर मध्ये 20टा क्वेश्चन अछि जदि 20टा क्वेश्चन तुमानकर किछि समस्या रहिला डाउट रहला पछारि परिबो ता सहित 20टा क्वेश्चन नु केते करेक्ट करछ सेटा मध्ये तुम माने मेंशन करिवो क्वेश्चन नंबर 1 प्ले ए स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज स्कोरिंग गाइड हम व्यवहार करूचे काहे कि आमे चाहूचे पिल्लांकर जो वर्क रहिला पिला जो हमें कहि परिबा तार परफॉर्मेंस रहिला से परफॉर्मेंस को हम चाहूचे इवैल्यूएट करिया पय तले से स्कोरिंग गाइड टा व्यवहार करछ ताको हम कोन कहे पिले आंसर कर रे ना सर स्कोरिंग गाइड बा स्कोरिंग स्कीम बा असेसमेंट टूल ताको हम कहूचे बा हम स्कोरिंग टूल बेली कहूचे सेटा हला हमर कोन ना सेटा हला हमर रूब्रिक्स मन रखतियो पिले रूब्रिक्स रूब्रिक्स रा हम कोन कहूचे याको स्कोरिंग गाइड बोली कहूचे को असेसमेंट टूल भाबरे कहूचे याको स्कोरिंग स्कीम बोली मध्य कहूचे ठीक है पिले स्कोरिंग टूल मध्य कहूचे मन रखियो ए केतरा टर्म ये कौन करा जाए आदरा ना सर एथरा हम पिलांकर परफॉर्मेंस को असेस करू केमति असेस करू ना असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड किछि प्री फिक्स स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया आधार रे हम पिलांको असेस करथाउ सो असेसिंग द परफॉर्मेंस based on certain criteria or standard ठीक है किसी क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड आधार में ट्राई करू पिलार परफॉर्मेंस को असेस करिया पे मु तो मानक बहुत एग्जांपल भी देइछि जेमति कि मु तुमको जोडे जनरल एग्जांपल दे डिबेट रो डिबेट हो एसे हो जार एग्जांपल पिला दे परिबो डिबेट डिबेट रे हम क्राइटेरिया सेट कर दवा पिलार आई कांटेक्ट को भलिया पिला को भलिया कहूची पिला कंटेंट केते कवर करूची पिला गेस्चर को भलिया शो करूची पिलार एक्सप्रेशन को भलिया ऑडियो ऑडियंस को केमति कैटर करूची तार ऑडियो टा को भलिया आसुची ए सब दिन को मध्ये हम क्राइटेरिया रखी गोटे रेंज रखी के मध्ये ताकू तार परफॉर्मेंस को हम करबा ताकू स्कोर कर परिबा ठीक है पिली तो दी प्रकार मध्य रुब्रिक्स अछि त मन रखियो गोटेला कोन ना गोटे एनालिटिकल रुब्रिक्स आउटला त मन कर होलिस्टिक रुब्रिक्स आंसर कोन पिली एटा हमर ऑप्शन ए रुब्रिक्स होछि कोन करेक्ट आंसर हां ऑप्शन अछि पिले चेकलिस्ट रो व्यवहार हम काहे करथौ पिले ना सर चेक करिया पई कोन चेक करिया पई ना सर गोटे आइटम हो स्किल हो किबा बिहेवियर हो सेटा प्रेजेंट अछि कि एब्सेंट अछि सेटा कंप्लीट हेछि कि इनकम्प्लीट अछि दैट वर्क इज डन और नॉट डन तो एई भली क्षेत्र रे हम चेकलिस्ट रो व्यवहार करथाउ चेकलिस्ट होछि कोन
ନା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ସ ହଉ ସ୍କିଲ୍ସ ହଉ whether that is present or absent, complete or not, simple ମନେ ରଖିବ done or not done, କାରଣ ଆମକୁ କ୍ୱିକଲି ଦରକାର ଆନ୍ସର। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି। ପିଲେ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଦେନ୍ ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ବିହେଭିୟର, ଟାଇପ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ବିହେଭିୟର, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ନୋଟ ଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ପର୍ସନାଲିଟି ଇନଭେଣ୍ଟୋରି, କାରଣ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିପୋର୍ଟସ ଦରକାର। ତ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ଇଜ ଲାଇକ ଡିଟେଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିପୋର୍ଟସ। ଆସିଲା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଆମେ କଣ କରୁ ପିଲେ, ଡିଗ୍ରୀ ଅର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏ ଟ୍ରେଟ୍ ଅର ବିହେଭିୟର, ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର ଡିଗ୍ରୀ ବା କ୍ୱାଲିଟି ବା ରେଞ୍ଜ କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ ଆମେ ଆସେସ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ତମାନଙ୍କର ଅଛି କଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ତମାନଙ୍କର ଲିକଟଙ୍କର 5 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଯେମିତି ତମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏଗ୍ରି, ଏଗ୍ରି, ଅନଡିସାଇଡେଡ, ଡିସଏଗ୍ରି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିସଏଗ୍ରି। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? Question number 2 ପିଲେ, when is the best time to evaluate a student's performance? ପିଲାମାନଙ୍କର performance କୁ evaluate କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ best time ପିଲେ କୋଉଟା? ସାର୍ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଫଲୋ କରୁଛେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ କୋଉ କଥା କହୁଛି, ଫର୍ମେଟିଭ କଥା କହୁଛି। ସୋ ଫର୍ମେଟିଭ କୋଉ କଥା କହୁଛି, ଫର୍ମେଟିଭ କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଆସେସ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ମନିଟର କରିପାରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା ଜାଣିପାରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିମିଡିଆଲ ମେଜର ଦେଇପାରିବା। ତ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରୁଥିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆରଟି ଆକ୍ଟ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରିଛି। Question number 3 ପିଲେ, Rogers believes that each person has a natural tendency towards growth. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ କି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହଉ, ତାର ଗ୍ରୋ ହଉ, ତାର ଡେଭଲପ ହଉ, ତାର ଫୁଲ ପୋଟେନସିଆଲିଟିସ ର ଫୁଲେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଇନନେଟ, ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ଅଲ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ ବାର୍ଥ। ଆମେ କହୁଛେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ରୋଜର୍ସ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କୁ, ନା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ, ବା ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆମେ କହିବା। ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରୋଜର୍ସ କିଛି ଆଇଡିଆ ତମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ରଖ। ରୋଜର୍ସ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜେନୁଇନନେସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ପାଥି। ଜେନୁଇନନେସ କଣ ହେଲା, ଓପନନେସ ଆଉ ଡିସକ୍ଲୋଜର ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଓପନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହଉ, ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିସକ୍ଲୋଜର କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ହଉ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ ସହିତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାକୁ ଏମ୍ପାଥି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବା ଦରକାର, ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବ, ତା କଥାକୁ ବୁଝିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଜେନୁଇନନେସ, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଏମ୍ପାଥିର ସହିତ, ତାହେଲେ ପର୍ସନର ଗ୍ରୋ ହେଇପାରିବ, ଫୁଲନେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ରୋଜର କଣ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ତାର ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କଲା, ୱିଶେସକୁ ଆଚିଭ କଲା, ଡିଜାୟାରକୁ ଆଚିଭ କଲା, ତାର ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉଟା କି ତାର ବିହେଭିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଟିଚର କୋଭଳି ହବା ଦରକାର, ଟିଚର ହଉଛି ସୋର୍ସ ଅଫ ମୋଟିଭେସନ, ସେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହବା ଦରକାର। is the cause of all psychological problems। ଆଦ୍ର କୋଉଟା ସମସ୍ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପିଲେ, ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ର କଜ କୋଉଟା, ନା ଯଦି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର କଣ ହବ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଇନିଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଅଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଫୁଲେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବା, କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ଆମେ କହୁଛେ ଇନ୍ ନେଚର। ଆମେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ହବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କଣ, ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିଲି, ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ
force for growth, force for development, force for fullest development, force for fulfillment of fulfillment of potential। जहाँ हमर पोटेंशियलिटीज अछि तार फुलफिलमेंट ପାଇଁ हमर जो इनेट ड्राइव टा अछि जो फोर्स टा अछि ताको हम कोन कहिबा एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कहबा। जेम जोटे गछर तार इनेट टेंडेंसी कोन ना ग्रो करिबा। जे पुअर सॉइल हो किंबा रिच सॉइल हो से कोन करिवो ना ग्रो करिवो। सेमति मनुष्य मध्ये जोटे एक्चुअल टेंडेंसी अछि ग्रो करिवार जोटा को हम एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी बोली कहिबा। Question number 5. Who assumed that every person has an inherent tendency to actualize his unique potential? किए आदरू assume करथिले कि प्रत्येक मनुष्यर किछि इनहेरेंट बा जोटा हम कहउछे इनेट बा इनबॉर्न भी कहि परिबो बा बार्थ जन्म समयरु जो किछि टेंडेंसी बा किछि हम कहिबा ड्राइव रहिछि से संबंध रे किए कहितले जोटा हम कोन कहउतले पिले परवर्ती समय रे तमन बुझेइतले ना एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। तुमको कार्ल रोजर्स करो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। व्हाट इज एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी एबे तो डिस्कशन करली एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कोन बिले हैविंग मोटिवेशन टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट जीवन को फुलेस्ट भाबरे जीवार अछि फुलफिलमेंट करिवार अछि पोटेंशियलिटीज को सेल्फ ग्रोथ करिवार अछि। रोजर्स सेल्फ ग्रोथ फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इज नोन एज एक्चुअल टेंडेंसी। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बिले व्हाट इज एन इंडिविजुअल सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज कहले हम कोन बुझे पिले सर हाउ आई सी माई सेल्फ कि मु केमिति निजु देखुची हाउ दे सी देमसेल्व्स से हम निजु केमिति देखुचंती सेटा से मानकर सेल्फ इमेज। तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। बट कांग्रुएंस कांग्रुएंस कहले हम कोन बुझे मु तो मानु केबे कहि के आसु जतबेले हमर जो सेल्फ इमेज ता अछि सेटा ओवरलैप करि जिवो का सहित ना आइडियल इमेज सहित। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେ ଦିଟା ମର୍ଜ ହେଇଗଲା ଯଦି ସେ ଦିଟା ସମାନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଧର ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳି କାମ କରୁଥିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ ବିକଜ ମୋର କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ହେଲା। କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ମାନେ କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ଆଉ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ଯଦି ସିମିଲାର ହଉଛି ସମାନ ହଉଛି ଯଦି ଓଭରଲ୍ୟାପ ଯଦି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ହଉଛି। when an individual's ideal self correspond corresponds with their self image ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ଟା ବା ଆଇଡିଆଲ ଇମେଜ ଟା ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ସହିତ କଣ କରୁଛି ନା କୋରେସ୍ପଣ୍ଡସ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ। ଦେଖି ରଖ ପିଲେ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କହିବା ବା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ଆଉ ଆଇଡିଆଲ ଇମେଜ ଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଭରଲ୍ୟାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଧିକ ଓଭରଲ୍ୟାପ କରୁଛନ୍ତି ସିମିଲାର ହଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ठीक है जो मोर ओवरलैप करो ताहले हम कहबा तार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हे परिबो कांग्रुएंस हेले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होबो। इनकांग्रुएंस कोन ना तळे सेल्फ इमेज आ आइडियल इमेज ता कोन करबो ना ओवरलैप करिवो नै बहुत कम हमें कहूचे ताहले कोन होबो ना लिटिल ओवरलैप जतळे करिवो बा जतळे डिफरेंट होबो सेल्फ इमेज आ आइडियल इमेज मु चाहूची टीचर होबा पई सेपड मु बैंकिंग रे कोचिंग नउची तो एठी कोन एठी डिफरेंस हमें देखि पारुचे तो हेठी कोन होबो ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होबो फुलेस्ट डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट होबो। Question number 9. The process of taking in new information and adding it to what the child already knows is called ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଆଡ କରୁଛେ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ ରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଆନ୍ସର କର ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଆଜେଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆସ स्कीमा असिमुलेशन अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। स्कीमा रे कहली क्रिएटिंग मेंटल इमेज और मेंटल फोल्डर। असिमुलेशन है एडिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा और एग्जिस्टिंग नॉलेज। देन अकोमोडेशन है मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो एटी कोन हमर देछि ऐड देछि हम एटी ऐड करिबा तो ऐड करिया माने कोन ना असिमुलेशन। स्कीमा रे हेले क्रिएशन क्रिएट करिबा अकोमोडेशन हेले मॉडिफिकेशन मन रखो खाली सिंपल एटा हला मॉडिफाई एटा हला क्रिएशन क्रिएट एटा हला ऐड
ମନେ ରହିଲା ପିଲେ modify create ଆଉ ହେଲା add question number 10 dash are mental representation ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କୋଉଟା ଆମର ଆଧରୁ mental representation of a concept ନା ସର କ୍ଷମା concept mental representation in which following stages will children learn the concept of conservation କୋଉ ଆଧରୁ ଆମେ କହିପାରିବା stage ରେ children conservation जो ability ରହିଲା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ develop ହେଇଥାଏ conservation ମାନେ କଣ ପିଲାଟା ବୁଝେ understand କରେ କି କିଛି ଯୋଉ properties ରହିଛି ସେ properties ଟା କେବେ change ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର shape appearance apparatus change ହେଇଯାଏ ଯେମିତି properties like numbers mass volume weight ଇଏ ବଦଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର appearance ବଦଳି ଯାଇପାରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ understanding ଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ conservation ତ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କୋଉ stage ରେ ପିଲେ ନା ସାର୍ ଏଇଟା concrete operational stage pre operational stage ରେ ଆମେ କହୁ absence of conservation ସେଠି ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାଟା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି 2 to 7 ଇୟର୍ସ ତ ତାହେଲେ ସେଠି absence of conservation ସେ conservation ability ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପିଲା କଣ କରିବ ଦିଟା କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବ ପାଣି ଥିବ ସମାନ ଚିତ୍ର ଏକା ଆମେ କହିପାରିବା ଭଳିଆ ପାତ୍ର ସେଥିରେ ପାଣି ଥିବ ତମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାତ୍ର ନେଇ ଆସିବ କଣ କରିବ ସେଇ ପାତ୍ରର ପାଣିକୁ ସେ ଲମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଦବ ସେ ପିଲା କହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ପାତ୍ର ଏଇଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି କି ଏ ପାଣି ଯେତିକି ଅଛି ଏ ପାଣି ସମାନ ଅଛି ମାତ୍ର ଏଇଟା ବହୁତ ସରୁ ପାତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାର କନଜରଭେସନ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ ହେଇ ନାହିଁ ଯଦି କନଜରଭେସନ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହବ ତା ପରଠାରୁ ତାହେଲେ ସେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ପାଣି ସମାନ ଅଛି ଠିକ ହେଲା ପିଲେ क्वेश्चन नंबर 12 ability to use deductive thinking think abstractly systematically solving problems emerges during what stage of Piaget's cognitive development କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ କରିପାରେ ଆନାଲୋଜିକାଲ ରିଜନିଂ କରିପାରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରେ ପ୍ରପର ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କରିପାରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ନା ସାର୍ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ in young children to see the world through someone else's view is termed as inability ଏବେ ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି inability to see someone else perspectives or view ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଓନ୍ ଡିଜାୟାର ଓନ୍ ୱିଶ ଓନ୍ ହାବିଟ୍ସ ତା ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ କରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଅଧିକ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ 2 to 7 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ क्वेश्चन नंबर 14 प्ले in his theory of cognitive development Piaget explains cognitive structure in terms of a Piaget जो cognitive structure ଟା ପିଲେ କହିଥିଲେ ସେ cognitive structure ଟା କେମିତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସେ ସ୍କିମାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ସେ cognitive structure କୁ cognitive concept କହୁଛେ mental image କହୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କହୁଛେ mental representation ଆମେ କହୁଛେ question number 15 ପିଲେ in Piaget's theory a process which is the balancing act between old and new between assimilation and accommodation balance between perception and experience is known as what equilibration বা equilibrium ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମର old thought ଆଉ new thought ଭିତରେ balance ଟା ରହେ assimilation ଆଉ accommodation ଭିତରେ balance ଟା ରହେ question number 16 which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget ଆଧରୁ କୋଉଟା ପିଲେ concrete operational stage ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ hypothetical deduction বা hypothetical reasoning ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା formal operational conservation ପିଲେ ହଁ conservation ହେଲା ତମମାନଙ୍କର concrete operational ଏବେ ଆମେ କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର object permanence ଆଉ deferred imitations ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର sensory ଆଉ ତମମାନଙ୍କର irreversibility of a thought make believe play ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର pre operational There's few children as active builders of knowledge and a little scientist. ଆଦରୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ହଉଛନ୍ତି little scientist ପିଲା ହଉଛନ୍ତି knowledge constructor knowledge builder କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ସାର୍ ଜିନ୍ ପିଆଜେ
मन अछि तो तुमनकर ना पिला होचंदी साइंटिस्ट, पिला होचंदी इंडिविजुअल एक्सप्लोरर, पिला होचंदी सॉलिटरी लर्नर, से माने इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्रू रे, इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन थ्रू रे नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करी पारिबे। क्वेश्चन नंबर 18 play. As a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your students? जदि आमे ले भाइगोट्स को फॉलो करूचे तांको बिलीफ सिस्टम को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को ताहले आमे पिला केमति असेस करिबा को मेथड रे असेस करिबा सर ले भाइगोट्स के माने ग्रुप वर्क कोलैबोरेटिव वर्क कोऑपरेटिव वर्क सोशल मीडिएटेड वे आमे कहि परिबा रेसिप्रोकल वे रे कहि परिबा गाइडेंस सपोर्ट रो कथा कहि परिबा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हबो कोन तांकर गोटे मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक पिला को असेस करिया पे एज पर द व्यू ऑफ ले भाइगोट्स्की क्वेश्चन 19 according to Le Vygotsky, the primary cause of cognitive development ର କାରଣ ପିଲେ କଣ ନା ସାର୍ सोशियो कल्चरल आमे कहि परिबा इफेक्ट कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावटा पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपरे प्रभाव पकई थाए तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर सोशल इंटरेक्शन सामाजिक भाव विनिमय का सहित सामाजिक भाव विनिमय करिवो ना सर एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स जो माने टीचर होई पारे पेरेंट्स होई पारे हम संग होई पारे मोबाइल फोन होई पारे इंटरनेट होई पारे रेडियो टेलीविजन होई पारे तांको मध्ये हम एमकेओ कहिबा जदि से माने हमठरो अधिक नॉलेजेबल क्वेश्चन 20 प्ले अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग आदर कोड प्ले लर्निंग पे अधिक गुरुत्वपूर्ण जिन पियाजे को मतरे सर एक्टिव एक्सप्लोरेशन कारण से कहउचंते इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस आमे कहउचे हमर जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस गुडा रहिला से एक्सपीरियंस गुडा हम एक्सप्लोर करिबा आमे ट्राई करिया प्रायर नॉलेज सहित लिंक की करिबा तो एई सीरीज रु बाई मॉक टेस्ट रु तमानकर 20 रु केते स्कोर आसला सेटा मेंशन कराइबे ता सहित तो माने केतेटा भूल कलो ता सहित तो माने कोटा बुझी पारलोने सेटा मध्ये मेंशन करि परिबो जिबा नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 106 जोथरे तुमानकर मध्ये 20 टा क्वेश्चन रहिछि 20 टा क्वेश्चन रु तमाने केतेटा ठीक करछो मेंशन करबा सहित जोटा न बुझी पारुछो सेटा मध्ये पचारि पारिबो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की चिल्ड्रेन लर्न भाइगोट्स्की मतरे पिला केमति लर्न करिथाए ना सर पिला लर्न करिथाए बाय इंटरैक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पियर्स से अन्य मानक सहित इंटरैक्शन करी सोशल इंटरैक्शन हमें कहूचे जो नो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रे ताकु जते बडे जो ताकु सपोर्ट रा आवश्यकता पडुची स्कैफोल्डिंग से करूची टेम्पररी सपोर्ट माध्यम रे से करूची लर्न करि पारुची तार प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारुची पिला जानि छी हम कहूचे हाउ सॉल्व प्रॉब्लम टा आधा सॉल्व हेतिबो आउ टिके गाइडेंस मिले से पूरा ताकु सॉल्व करि पारिबो क्वेश्चन नंबर 2 which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory आत्र कोटा Vygotsky's socio-cultural theory सहित बा को आधार करी तुमनकर गोटे स्टेटमेंट पिले ना सर रेसिप्रोकल टीचिंग एई केतरा तुमनकर कहिछि तुमनको मन रखिबो कोन कोन ना सोशल मीडिएटेड रेसिप्रोकल ग्रुप लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग सोशल लर्निंग ए केतरा पॉइंट तुमन मन रखियो पिले एटा तुमनकर कोन एजुकेशनल इंप्लिकेशन भितर आसीबो ले भाइगोट्स्कीଙ୍କର क्वेश्चन नंबर 3 पिले which of the following statement describes Piaget and Vygotsky's views on language and thought correctly language ଆଉ thought को नै सेमानकर व्यू कोन पिले ऑपोजिट थॉट्स मानकर language ଆଉ cognitive development को नै बा thought को नै according to Vygotsky thought emerges fast according to Piaget language has a profound effect on thought ना पियाजे कहउचंती थॉट थिंकिंग प्रोसेस कॉग्निशन तार गोटे इंपोर्टेंट बा प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ी थाए लैंग्वेज ऊपर नुहे कि लैंग्वेज रो पड़ी थाए तो एटा हेई परिबो नाही बोथ व्यू लैंग्वेज एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट नाही
According to Piaget, thought emerges first. हाँ कि पियाजे होचंती आगो थॉट आसीबो थिंकिंग प्रोसेस रो डेवलपमेंट हबो तापर से थॉट टा लैंग्वेज को प्रभावित करिवो किंतु तार ऑपोजिट रे भाइगुड्स कहउचंती ना लैंग्वेज हमर थिंकिंग थॉट प्रोसेस बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे गोटे प्रोफाउंड इफेक्ट पकेबा इंपैक्ट पकेइ थाए ठीक है प्ले तो सेही दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 प्ले अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम भाइगोट्स के अनुसार लर्निंग टाको हमें कहा से सेपरेट कर परिबा नहीं ना सर तार सोसाइटी रु बा तार हमें कहि परिबा सोशल कॉन्टेक्स्ट रु हमें ताको सेपरेट कर परिबा नहीं कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट सोशल कॉन्टेक्स्ट कारण से सोशल इंटरेक्शन करी भाव विनिमय करी ही तार ज्ञान रो गठन करि थाए कारण जिन पियाजे कहउचंती पिला इंडिविजुअली एक्सप्लोर करके ज्ञान रो गठन करिवो किंतु अपोजिट रे भाइगोट्स कहउचंती पिला सामाजिक भाव विनिमय करके ज्ञान रो गठन करिवो जोथरे कल्चर रो गोटे इंपोर्टेंट भूमिका रहिछि तार कॉन्टेक्स्ट रो गोटे इंपोर्टेंट भूमिका रहिछि परमानेंसी प्ले जोटा कि हम जानि सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला भितरे डेवलप हेताए जिन पियाजेंगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भितरे आसुछि ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स able to understand the permanent existence of a object गोटे ऑब्जेक्ट रो परमानेंट एक्जिस्टेंस अछि बोली से जानि पारे ऑप्शन सी बोले ability to know that not seeing an object does not mean it does not exist गोटे ऑब्जेक्ट को मु ताको देखैली तापर ताको रखिदेली ता माने नुई से भाबियोनी कि से ऑब्जेक्ट आउ नाही बोली तुम छोट पिला को परीक्षा करिवो गोटे खेलना ताको देखैबो से खेलना लुचे दबो कांदी करजो सेही खेलना को दरकार सेही खेलना को लुचे जो बाहर कर सेटा तमे कहजो ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑब्जेक्ट परमानेंट एक्जिस्टेंस अछि बोली से जानि पारिबो तो से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम प्ले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 प्ले which of the following is a general criticism of Jean Piaget's work आदर कोटा प्ले Jean Piaget कर गोटे criticism बा general criticism हम देखियो पाइथौ आंसर करो प्ले work had a little evidence to support it he did not take into account social influence social और cultural influence को से गुरुत्व देई नाहांती एटा गोटे तारो आमे कहि परिबा क्रिटिसिज्म आ बहुत सारा क्रिटिसिज्म अछि प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखिबो पिला मानकर एबिलिटी को से टोटली नेग्लेक्ट करछन से होजन पिला होछि इगोसेंट्रिक पिला ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करि पारे नाही बिल्कुल एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन बा विभिन्न प्रकार जो आमे कहि परिबा इरिवर्सिबिलिटी जो दिन छोडा पिलार इनएबिलिटी को पूरा शो करछंती बा पियाजे अंडर एस्टिमेटेड चिल्ड्रेन्स एबिलिटी पिला मानकर एबिलिटी को से अंडर एस्टिमेट करछंती एटा गोटे क्रिटिसिज्म मन रखिबो अंडर एस्टिमेटेड चिल्ड्रेन्स एबिलिटीज ओवर एम्फासिस हम कहि परिबा स्टेजेस को बेसी गुरुत्व आरोप करछंती कल्चरल बायस हम कहि परिबा एमति केतरा तांकर क्रिटिसिज्म मध्ये हम एक्स्ट्रा रे ऐड करि परिबा क्वेश्चन नंबर 7 प्ले the teacher observed that Robbie is not able to solve a problem alone while is while he solves it easily when individualized support is provided to him by his teacher in Vygotsky view this kind of support is called पिले रवि निजे एलोन बे एकुटिया भाବରେ समस्या को समाधान करि पार नाही जेतबे ता टीचर ताको सपोर्ट दउची ताले समस्यार समाधान करि पारुची तले तमे कोन कहिबा मु तो मानु कहउतली छोटो पिलाटा चाली पारनी ता हाथ धरि चालिलो जेतबे से चाली सिखियला ताल तम हाथ धरा आवश्यकता पडिलानी सेमति रवि प्रॉब्लम सॉल्व करि पारुनी ताको टिके बुझेइ देला कहि देला से प्रॉब्लम सॉल्व कला परे तमरा आवश्यकता पडिबा नाही तो हमें कहउचे कोन स्कैफोल्डिंग कोन ना सर टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करिबा प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट ठीक है A child is struggling to learn how to read by working with the student to teach how to sound out words and use other words recognition strategy. The child is able to learn and read. Which construct does the above example highlight? पिले पिला तार रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम अछि तला हमें कोन करिबा पिला केमति साउंड भलो से करि परिबो पिला केमति वर्ड को रिकॉग्नाइज करि परिबो हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी रो यूटिलाइजेशन कले आदरा पिला रीडिंग करि परला ताले एटा कोन हमें कहि परिबा एटा को जोन गोटे पिलार
ନା ସେଟା ଯୌନ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ପିଲା ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି, ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜୋନ୍ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯଦି ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଜୋନଟା ରହିଲା ସେ ଜୋନଟାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ZPD ବା ଜୋନ୍ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପ। Not true about the socio-cultural theory of Vygotsky। ପିଲେ Vygotsky ର socio-cultural theory ଅନୁସାରେ ଆର କୋଉଟା ପିଲେ ଠିକ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର କର। ଇଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିଡ୍ସ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଭାଇଗୋଟ୍ସକି। ତ ଅପସନ 3 ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ ଆମେ କହିପାରିବା। क्वेश्चन नंबर 10। Vygotsky social development theory laid the foundation for। ଭାଇଗୋଟ୍ସିଙ୍କର social development theory ପିଲେ କୋଉ theory ଆମେ କହିପାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି? ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ। କାରଣ ଭାଇଗୋଟ୍ସକି ଆମେ କହୁ ଫାଦର ଅଫ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ର, ଆଉ ଜିନ୍ ପିଆଜେକୁ ଆମେ କହୁ ଫାଦର ଅଫ କଗ୍ନିଟିଭ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ର। Following is a good example of a scaffolding। ଆଦର କୋଉଟା ଗୋଟେ scaffolding ର ପିଲେ good example ଆମେ କହିପାରିବା? ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ହାଫ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ପିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲା, ତାହେଲେ କଣ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବିଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲା। ତ ଏଠି ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଲା, ବଟ୍ ନିଜର ଆମେ କହିପାରିବା ଆବିଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିପାରିଲା। ତ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ହାଫ୍ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅର ହାଫ୍ ସଲ୍ଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କାହାର ନା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ର ଗୋଟେ ଗୁଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ରିୱାର୍ଡ କୁ ଅଫର କରିବା ଇଏ କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଏଗେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ଏଗୁଡା କଦାପି ନୁହଁ ତମାନଙ୍କର କାହାର ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ। ଅପସନ 3 ତମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले। which of the following is true according to Vygotsky। Vygotsky अनुसार कोउटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट पिले? नॉलेज इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड एटा किए कहउचंती? एटा जीन पियाजेंकर पिले व्यू। इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन थ्रू नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करे। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पीपल एज दे इंटरैक्ट। हां, सोशल इंटरैक्शन थ्रू रे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन हेताय। ठीक है पिले? पैसिव कथा कहला बोथ पियाजे और भाइगोट्सकी कहजंती कि लर्नर होची एक्टिव और लर्निंग होची गोटे एक्टिव लर्निंग प्रोसेस मन रखथिबो। ए पैसिवनेस कथा से माने केही कहिनाती, पियाजे कहिनाती कि भाइगोट्सकी मध्ये कहिनाती। बट भाइगोट्सकी व्यू ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आधार करी भाइगोट्सकी कोन प्ले व्यू रहिछि? इट इज सीक्वेंस ऑफ लर्निंग स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एसोसिएशन। ए स्टिमुलस रेस्पॉन्स कथा कहिनाती टोटली। एटा बिहेवियरिज्म सहित एसोसिएटेड तमनकर। इट इज जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड। It is associated with children's experience in the historical and cultural context। लर्निंग टा कहा सहित पिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट टा कहा सहित जड़ित? ना पिलार अनुभूति, तार हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल कॉन्टेक्स्ट ता सहित एटा जड़ित, कारण सेगुडिक शिक्षण को एवं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करिथांती। Really enjoys riding motorcycles, it gives him personal satisfaction। ये टर्म गुड़ाक शुणुता पर्सनल satisfaction आउट हला enjoy। his desires to ride motorcycles connect to which of the following? एटा कहा सहित रिलेट करूछि बिले तार जो डिजायर टा आंसर करे बिले? ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିକି ଆସୁଥିଲି କି ଇଣ୍ଟ୍ରିଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ, ଏକ୍ସଟ୍ରିଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ। ଯଦି ମୋଟିଭେସନ ଟା ଆମେ କହୁଛେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି ନା ସାର୍ ପର୍ସନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ ହଉଛି, ମତେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟ୍ରିଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ। ତ ଏଇଟା କିଏ କେଭିନ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, କେଭିନ କୁ ପର୍ସନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦଉଥିଲା, ତ ଏଟା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ? ନା ଇଣ୍ଟ୍ରିଜିକ୍ ମୋଟିଭେସନ ଭିତରେ ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁ ଆର ମୋଟିଭେଟେଡ ବାय ପର୍ସନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ or because of your personal enjoyment, not not through external factors like reward, like money, praise or punishment, ତାକୁ ଆମେ intrinsic motivation ବୋଲି କହିବା। ତ ଯୋଉଠି ଟର୍ମ ଦେଖିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପ୍ଲେଜରେବୁଲ,
पर्सनाल साटिस्फैक्शन एटा तुमनकर इंट्रिंसिक मोटिवेशन सहित पिले जड़ित। क्वेश्चन नंबर 15 प्ले which of the following is not an internal motivational force आदर कोटा गोटे internal motivational force नुहे ना सर हमरो गोल हेगला नीड हेगला एटीट्यूड्स हेगला ये सब हमनकर इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स भितर आसीबो किंतु फीडबैक हमको आउ जणी के दबो तो फीडबैक गोटे इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स नुहे। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले A production supervisor receives a bonus for each day a project is completed ahead of a schedule. This is an example of what? जड़े प्रोडक्शन सुपरवाइजर कौन कला पिले ना आगुआ शेड्यूल टाइम पूर्व प्रोजेक्ट को कंप्लीट करदेला से कंप्लीट कर दिए से कौन मिले ना बोनस मिले तो कमें कौन कह पिले जहाद्वारा तार गोटे आग्रह बढ़ से पुणी थे चेष्टा कर टाइम पूर्व कम को सारे तो कमें कौन कह पिले ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिल कहबा। रीइंफोर्समेंट कौन सर रीइंफोर्समेंट होची पुनर्बलन anything which increases the probability of occurring same behavior again and again जहाँ आम मानकर व्यवहार बारंबारता को वृद्धि करि थाए ताको हमें कौन कहबा ताको हमें रीइंफोर्समेंट कहबा। रीइंफोर्समेंट को दुईटा कैटेगराइजेशन करबा गोटे हला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ गोटे हला नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्ले नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रो डिफरेंशिएशन तुम जानि रखिथाओ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम कहउचे गोटे प्लीजेंट जे कोनसी गोटे सुखद थिंग को एडी करछि ऐड करूचे एटा हला adding a pleasant thing आउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कोन होपि एटा ने रिमूव कर देबा रिमूव माने अनप्लीजेंट थिंग मन रखिथिबो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर रो प्रोबेबिलिटी बा बारंबारता को बढ़ाए आउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मध्य बिहेवियर रो प्रोबेबिलिटी एवं बारंबारता को बढ़ाए नेगेटिव बोली भाबियोनी ये कमेई दबो आ द्वारा पिलारा से काम करिया पे आग्रह होबनी ना जेमति कि एग्जांपल तमे नेलो कि गोटे कामटा को टाइम पूर्व सरेबा पई ताको कोन दिया होतला से टाइम पूर्व सरला बेले ताको बोनस दिया गला तापर कोन होतरा आग्रह बढ़ियो मु टाइम पूर्व नेक्स्ट टाइम भी सरे देबी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कोन माने जोट कि मत भरम था से विथड्रॉ कर दबो ता द्वारा आग्रह बढ़िबो जेमति कि मु मते रूम अलॉट करा जाईची जेमति कि हम कॉलेज रे जदि चिंता करिबा मते रूम दिया हेची जो रूम रे हम कहबा किछि फैसिलिटीज नाही मते भलो लागुनी सर कोन कले ए मो रूम टा को विथड्रॉ करतले काढी देले मते आ गोटे भलो रूम देले जा द्वारा कोन हो मोर आग्रह बढ़ियो टाइमली क्लास कमा पई बा भलो 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 एक्टिविटीज करिया पई बा विभिन्न प्रकार कार्य करिया पई कोन दिन से कोरी जेमति मु कहि मो जो क्लास रे पढु से क्लास रे 10 जण बाळंगा पिला अछंती प्रिंसिपल सर कोन कले ना देखिले मो कार्य देखि से कोन कले ना 4 जण बाळंगा पिला को 5 जण बाळंगा पिला को आउ गोटे जगह को पठै देले ता द्वारा कोन हो मोर आग्रह बढ़िबो कि मु आहुरी भलो काम करबी नेक्स्ट टाइम मोर से सब बाळंगा पिला को पढा जिवो। तो रिमूविंग समथिंग जेते बळे हमर कोन करिवो इनक्रीज करिवो बिहेवियर रो प्रोबेबिलिटी को बा सेम बिहेवियर अगेन एंड अगेन सृष्टि होबो ताको हमें कोन कहबा ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रे एडिंग नेगेटिव रे रिमूविंग मन रखिता। क्वेश्चन नंबर 17 a sales representative is told that if he exceeds his sales for the last quarter by 20% then some of his more difficult clients will be transferred another sales representative ए देखो यदि 20% से बढ़िबो तार सेल को ताले कोन हबो ना जो माने सब डिफिकल्ट क्लाइंट अछंती से क्लाइंट माने को आउ जने क्लाइंट पाकू पठै देबो ताले एडी कोन कला रिमूव करूची क्लाइंट यदि रिमूव करबो ताले कोन हबो ऐसा रिमूव करले आपण कहले पा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हबो देखो एडी बढ़िबो कमियो देखो जेते बेले तमे 20% कोन गलो बढ़ैलो सेल को तमर किछि क्लाइंट को एडी कढा हे गला ताहले तमर आग्रह बढ़िबो नेक्स्ट टाइम आहुरी बढ़ेबी यदि मोर सब जो माने सब खतरा क्लाइंट गुरा अछंती जो माने सब भलो क्लाइंट नान ता पूरा कढा जिवो ठीक है भी एटा तमनकर बीएफ स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग से जड़ित जो थरे हमें कोचे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट नेगेटिव पनिशमेंट पनिशमेंट सब करिवो ना बिहेवियर रो प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करिवो किंतु नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर रो प्रोबेबिलिटी सब बढ़ाइबे। क्वेश्चन नंबर 18 प्ले who has suggested that achievement motivation among individuals and nations
can be developed through training process. એટલે achievement motivation କହୁନ କିଏ ଦେଇଛି? achievement motivation, power motivation, affiliation motivation, ଏ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର motivation ଏଟା ମ୍ୟାକଲେଣ୍ଡଙ୍କର ତମେ ମନେ ରଖିବ। ମୋଟିଭେସନ ର ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲି ତମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଓରିଜ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 which of the following factor affect learning? ଆଉଥରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ପିଲେ? ତାର ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ ଏଟା ହେଲା ସାଇकोलॉजिकल ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ତାର ଇମୋଶନାଲ ହେଲ୍ଥ ସାଇकोलॉजिकल ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, pedagogical strategies ଏଟା ହେଲା ଏଜୁକେଶନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एटा ला एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब जाक होची तार शिक्षण प्रभावित करते। तो ऑप्शन 4 तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 प्ले which of the following statement is not correct with reference to learning? शिक्षण को आधार करी आ कोटा पिले करेक्ट नुहे, नॉट करेक्ट। नॉट पाखरे क्वेश्चन रे सब बेले गोटे गोल आगे बुलेई दबो। इट रिक्वायर्स फेवरेबल कंडीशन, हां लर्निंग पे कंडुसिव बा बेटर एनवायरनमेंट दरकार। इट हैज नो रिलेशन विथ मैच्योरिटी और मैच्योरेशन। लर्निंग रो मैच्योरेशन सहित पिले रिलेशन नाही, रिलेशन अछि। को प्रकार रिलेशन ना सर मैच्योरेशन फैसिलिटेट्स लर्निंग। मैच्योरेशन गोटे कंडीशन होची लर्निंग पाई। आउ मैच्योरेशन कोन करे ना सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करे लर्निंग पाई। यदि पिला मैच्योर हेई नथिबो सेही समय पिला को हम सिखौचे पढौचे दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। तेबे करी बोथ आर इंटर रिलेटेड हम कहि परबा, परस्पर सहित समान संबंधित। तो ऑप्शन 2 तो मानकर गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे विथ रेफरेंस टू लर्निंग। पिले आजिरो जहा तुमकर मॉक टेस्ट थिला पांचटा मॉक टेस्ट अर्थात हमें 100टा क्वेश्चन को कवर अप कले। मोर विश्वास आजिरो मॉक टेस्ट तमन को निश्चित भाबरे तमन को पई फ्रूटफुल होबो बा इफेक्टिव होबो। जे तमन किछि भी समस्या थिबो डाउट को तमन निश्चित भाबरे पचारि परिबो। आ हमें टारगेट रखिबा कि टारगेट रखुजी कि प्रत्येक दिन 100टा क्वेश्चन कवर अप करबा पई बा गोटे सीरीज करबा पई सब प्रकार चेष्टा करिबि जेमति तमनकर गोटे सीरीज निश्चित भाबरे दिन को करबा पई एवं ताहा भी संध्या 8टारे तमने निजको प्रस्तुत करके रखिथिबो। तमने जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपरेशन करूछ तुमको एई सीरीज बा मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट निश्चित भाबरे पेडागोजी रे मास्टरी तमनको करेबो मोर से विश्वास अछि। अगेन समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल।